I have had a client who said he will pay my fees by credit card correct. because वो cashback point मिलेगा. Real estate in every single market, Bombay, Delhi, Bangalore, Hyderabad, overall basis पे आप 10 साल का rolling returns देखें तो single digit returns हैं. तो कितने क्लाइंट्स को आप केटर करते हो? क्लाइंट नंबर शायद 1000 के वाह। होंगे. एसेट्स अंडर मैनेजमेंट हम देखते हैं अबाउट 3000 करोड़. Assets under advice 400 करोड़ के आसपास Okay. होगा. We are catering to about 300 clients. 1700 is the overall assets that we manage. There is no such thing as an ideal asset allocation. Rule of thumb works if everyone's thumb is the same. And it's different. सबसे कॉमन क्वेश्चन जो ऑडियंस का होता है, SIP वर्सेस लमसम. SIP is future income. Make sure you put money to your health insurance, life insurance. लेट्स से किसी की सैलरी है 20 लाख रुपए पर एनम एंड 30 साल उसकी उम्र है, क्या वो 1 करोड़ का घर ले सकता है या लेना चाहिए उसने ये टाइम पे? India is currently the fastest growing large economy in the world, and if you want to take real benefit of this growth story, investing in Indian businesses and companies is non-negotiable. Whether you're already investing in markets or just starting your investing journey, Grow is one of the platforms to do it. Grow's interface is very clean and intuitive. Here you can trade stocks, mutual funds, ETFs, IPOs, bonds, even commodities, all from one app. Portfolio tracking is also very structured. You can see performance, understand sector allocation, and get a complete breakdown of your investments in just a few tabs. And because of this simplicity and trust, Grow has become India's largest stockbroker today. Check out the Grow app today for more details and stay tuned for this entire episode of Conversation with Kushal. In total? क्लाइंट नंबर शायद 1000 से wow. होंगे. Okay. लेकिन फैमिलीज हम लोग गिनते हैं तो अराउंड 400 फैमिलीज Okay. है. एंड और- इसमें असेट्स अंडर एडवाइजरी ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट होता है? एसेट्स अंडर मैनेजमेंट हम देखते हैं अबाउट 3000 करोड़ है. ओह वाह. लेकिन अंडर एडवाइस ज़्यादा होंगे. हम नहीं मेजर करते हैं क्योंकि काफ़ी सारे क्लाइंट है जो किसी की प्रीमियर रिलेशनशिप, गोल्ड रिलेशनशिप मेंटेन करना चाहते हैं. तो हम बोलते हैं ठीक है आप मेंटेन करो, लेकिन अगर आप बताएंगे क्या आपको एडवाइस मिल रही है तो हम देखेंगे कि ओवरलैप ना हो, एलोकेशन ठीक हो, तो हम बताते हैं, उस पर कुछ चार्ज नहीं करते. गॉट इट. एंड हर सर, आप कितने क्लाइंट्स को केटर करते होगे एंड आपका क्या होगा ये नंबर? सो हमारा बहुत ही निश बुटीक बेसिकली फर्म है. हमारे करीबन 71 क्लाइंट फैमिलीज Okay. होंगी. क्लाइंट्स ऑफ कोर्स 125-150 होंगे. असेट्स अंडर जिस पे पैसे चार्ज करते हैं सिमिलर. ओके. असेट्स अंडर एडवाइस हमारा करीबन 400 करोड़ के आसपास Okay. होगा. तो 70 क्लाइंट्स, Got it. 71 क्लाइंट्स, 400 करोड़ assets under advice. But assets on which we advise but don't charge money would be another maybe 200 odd Okay. crores. So Got it. roughly 600 crore. सो एट प्रेजेंट आप कितने क्लाइंट्स केटर कर रहे हो? We are catering to about roughly 300 clients. ओके. So directly what we are charging is about 850 crores Okay. of assets. Another 850 crores or so, roughly 1600, 1700 is the overall assets that we manage. The other portion we may not be charging. Okay. So roughly 1700 crores is what we'll be roughly managing. total. Got it. Amazing. I think all three of you are perfect people to answer all the personal finance related questions. तो आपके तीनों के एक्सपीरियंस में एक सबसे बड़ी मिस्टेक जो आजकल के क्लाइंट्स या आजकल के लोग कर रहे हैं व्हेन इट कम्स टू फाइनेंशियल प्लानिंग, एंड इफ यू कैन गिव एन एग्जांपल ऑफ अ क्लाइंट कि उन्होंने ये गलती की थी एंड आपने उनको क्या रिकमेंड किया था, दैट विल बी अमेजिंग. So I think the biggest mistake people make, I get two sets of mistakes. One, that मेरे पास अभी पैसे नहीं है, जब भी पैसे होंगे तभी मैं फाइनेंशियल प्लानिंग करूँगा. और दूसरे लोग जो मेरे पास बहुत पैसे हैं तो मुझे फाइनेंशियल प्लानिंग करने की ज़रूरत क्यों है. तो ये दोनों मिस्टेक करते हैं, क्योंकि मेरे हिसाब से फाइनेंशियल प्लानिंग हर एक इंडिविजुअल को करना चाहिए फॉर मीटिंग देयर गोल्स. तो अगर आप सोचे कि मुझे मेरी सारी ख्वाहिशें हैं उनको मीट करने के लिए मुझे 200 रुपये चाहिए और मेरे पास 80 रुपये है, तो मुझे प्लानिंग की ज़रूरत है. मेरे पास अगर 580 रुपये है तो भी मुझे फाइनेंशियल प्लानिंग 200 रुपये के लिए चाहिए.
बाकी के 380 आप हॉर्स रेसिंग में करो या तकिए के नीचे रखो, आप आपकी चॉइस। लेकिन वो 200 रुपये के लिए तो चाहिए ही, क्योंकि अलग-अलग एस्पेक्ट्स फाइनेंशियल प्लानिंग में यूज़ होती है। एक तो गोल्स है, दूसरी जो रिस्क है, और तीसरी जो शायद हम तीनों में है, जो है तजुर्बा और एक्सपीरियंस। यानी द क्वेश्चन मोस्ट पीपल हु आर से 25 और 30 विल आस्क टुडे कि हमारे पहले 10 साल पहले जो लोग 30 साल के थे, उन्होंने क्या मिस्टेक करी थी और हमें क्या अवॉइड करनी चाहिए, या क्या चीज़ आपने मिस की थी जब वो 30 साल के थे जो आपको अभी पता है। वो आई थिंक वो एडवांटेज मिलता है हमें, और वो मिस्टेक शायद हर लोग शायद यूज़ करते हैं या मेक But कर can you give me an example of a client कि उन्होंने 2-3 चीज़ें गलत की आपके हिसाब से, maybe when it comes to mutual fund or insurance or let's say home loan या कोई भी एक category, and then आपने उनको क्या recommend किया? And I want like some mistake which is basically a lot of people are doing this today, especially youngsters, and कैसे इसको avoid कर सकते हैं? I think there's a lot of recency Hmm. bias, first and foremost, and you know it is what is viral is good. I think that's what the younger generation believes, that if everybody is doing Bitcoin, if everybody is doing FNO, if everybody is borrowing and buying real estate, then it's a great thing. So I should just copy paste. Or wo mistake I think is a big mistake, because they don't get into the bottom of what is the underlying and what happens if there is risk. तो मेरे हिसाब से काफ़ी सारे जो यंगस्टर्स है वो प्रोबेबिलिटी में विश्वास करते हैं कि चांस क्या है इसका, 2% चांस है कि ये मिस्टेक होगी, 98% सक्सेसफुल होगी। लेकिन क्या वो मिस करते हैं कि उनका इम्पैक्ट क्या होगा अगर वो 2% हुआ मिस्टेक। अगर आपने पूरे के पूरे आपकी पूरी पूंजी डाल दी एक पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट में या प्रोडक्ट में, और अगर वो जो रिस्क हुआ, यानी अभी देखिए पिछले महीने मार्च में जब वो मिडल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट हुई और आप सोच रहे थे कि ये अभी तो मार्केट ऊपर ही जाने वाली है, वो पीछे देखने का सवाल ही नहीं है, पिछले 1.5-2 साल में बढ़ती जा रही है, तो आप मिस्टेक करेंगे और ये सोच नहीं सकते कि ये रिस्क पोटेंशियल हो सकता है। क्योंकि बिगेस्ट रिस्क क्या होती है कि जो आप सोचे नहीं होते वो वही बिगेस्ट रिस्क है। तो अगर आप पूछेंगे नहीं ना, आप फाइनेंशियल प्लानर है, आपको तो पता होगा क्या रिस्क है। मुझे पता है कि जो रिस्क है जो मुझे भी नहीं पता है वो बिगेस्ट रिस्क है। You will have सो example. हाँ, मतलब क्लाइंट की मिस्टेक का नहीं, बट जैसे क्लाइंट ने, मेरा एक क्लाइंट है जो जिसने ये सवाल पूछा कि हर्ष, यू नो, सबसे ज़्यादा रिटर्न, मतलब मैं सारा पैसा ऐसी जगह क्यों ना लगाऊं जिसमें मुझे हाईएस्ट रिटर्न मिलने की प्रोबेबिलिटी है, और मुझे समझ में आता है कि हो सकता है कि वो शायद गिर जाए, बट मैं क्यों नहीं एम करूं मेरे हाईएस्ट रिटर्न के लिए, मैं और भी कुछ क्यों देखूं? आप ये जो प्लानिंग बोलते हैं, एसेट एलोकेशन बोलते हैं कि थोड़ा पैसा इधर लगाओ, थोड़ा पैसा इधर लगाओ, उसका क्या फ़ायदा? क्यों करें? व्हाई नॉट पुट एवरीथिंग इनटू सिंगल एसेट क्लास? और ये जो हमारी ऑडियंस जो शायद आज देख रही है, जो ये ज़्यादा जो यंगर लोग हैं, सभी का है ये प्रॉब्लम, लेकिन यंगर लोगों को थोड़ा ज़्यादा है, दैट इज़ ऑल, परसेंटेज वाइज़ थोड़ा ज़्यादा है। तो उस क्लाइंट को जो मैंने जवाब दिया वही मैं यहाँ बताना चाह रहा हूँ कि ये इस तरीके से हो गया कि दौड़ना शुरू करो। अरे भाई, फिनिशिंग लाइन कौन-सी तरफ है वो तो देखो, आप उल्टी साइड में दौड़ोगे, तो फिनिशिंग मतलब उद्देश्य आपको पता नहीं है, ओके? उसके बिना आपने दौड़ना शुरू कर दिया, स्पीड से दौड़ो, ओके? और जितनी फास्ट स्पीड उतना बेटर, ओके? तो उसमें 2 दिक्कत है। अगर आप मैराथन दौड़ रहे हो 40 किलोमीटर, तो आप उसको 100 मीटर की तरह नहीं दौड़ सकते, राइट? आपको पेस करना पड़ेगा, उसमें अपहिल्स भी आएँगे, ओके? उसमें तकलीफ़ें भी आएँगी। तो प्लान करे बिना आपने कोर्स पूरा नहीं देखा, तो क्या होगा? आपने डाल दिया, हाई रिटर्न के लिए डाला, मतलब ऑटोमैटिकली रिटर्न और रिस्क कनेक्टेड है। हाई रिटर्न
बिना हाई रिस्क के आ ही नहीं सकता, इट इज नॉट पॉसिबल। तो अगर आपका गोल है, जैसे उस क्लाइंट को घर खरीदना था, वो 2 या 3 साल में उसने कहा था मैं खरीदूंगा, ओके। अब आप हाई रिस्क में डाल रहे हो, वो क्लाइंट तो क्रिप्टो में भी डालते थे, ओके। क्रिप्टो में डाल रहे हो, आप इक्विटीज में डाल रहे हो हार्डकोर, और वो पैसा आपको 2 या 3 साल बाद चाहिएगा, ओके। उस समय अगर क्रिप्टो डाउन, और क्रिप्टो तो 70-70, 80-80% एक साल में डाउन होता है, ओके। बढ़ा भी बहुत है, अच्छा रिटर्न मिला है, एक दो दिन में 10-15-20% एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। तो अच्छा, एक ये बात हुआ कि जब आपको चाहिए, अगर आपने उद्देश्य के हिसाब से अपने इन्वेस्टमेंट्स नहीं किए, तो जब आपको चाहिएगा उस समय अगर उतना पैसा नहीं अवेलेबल है, तो आप क्या करेंगे? ओके, वन, दैट इज वन रीजन। सेकेंड, जब आप बिना उद्देश्य के लिंक करें, बिना गोल्स के साथ लिंक करें इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, तो आप ध्यान इन्वेस्टमेंट पे देते हैं। जब आप गोल्स के साथ लिंक करेंगे, तो आपका ध्यान गोल पर है। तो जो इन्वेस्टमेंट्स को जो पेशेंस चाहिए, वो आप दे पाएंगे, क्योंकि आपको पता है कि मेरी रेस अभी खत्म नहीं हो रही, ये अपहिल है, ओके। और लेकिन मुझे और दौड़ना है, तो लेट मी कंजर्व माय एनर्जी, ओके। सो वो जरूरी है। थर्ड, बिना प्लानिंग के अगर आप करेंगे, तो जो अनप्लान्ड खर्चे, आपका तो ध्यान सिर्फ इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न कमाने को है। अब आपको कार लेनी है, घर लेना है, तो आपने पैसे निकाल लिए, ले लिया। इनफैक्ट वो क्लाइंट ने वही पूछा था कि जब जरूरत पड़ेगी मैं निकाल के ले लूंगा। अब उस कार के लिए पैसे निकाल लिए, घर के लिए निकाल लिए, आपके रिटायरमेंट पे क्या फर्क पड़ रहा है, आपके बच्चे के एजुकेशन पे क्या फर्क पड़ रहा है, वो कौन कैलकुलेट करेगा? तो वो क्लाइंट तो खैर कन्विंस हो गए। मैं जो भी देख रहे हैं उनसे ये पूछना चाहूंगा कि बिना प्लान के इन्वेस्टमेंट करना मेरे हिसाब से एक तरह का पागलपन है, ओके। बिकॉज बिना प्लान के आप कुछ भी करेंगे, ओके, हो सकता है आपको रिटर्न्स बहुत अच्छे मिले, लेकिन उसके आपका जो पर्पस है वो पूरा होगा क्या, ये सोचने की बात और ये पूछना चाहिए कि जो लोग हॉलिडे पे जाते हैं, कैसे जाते हैं? यानी बोलते हैं कि चलो आज हॉलिडे पे जाएंगे, एयरपोर्ट जाते हैं, वहाँ देखेंगे कहाँ की फ्लाइट मिल रही है, वहाँ पे जाएंगे। वैसे तो नहीं जाते हैं ना। तो इन्वेस्टमेंट में भी वही आप सोच रहे हैं कि अच्छा विच इज़ द फास्टेस्ट वे टू गेट टू द एयरपोर्ट। अभी अच्छा कोस्टल रोड ले, मेट्रो ले, टैक्सी ले, क्या क्या कैसे जाए, वहाँ पहुँच के देखेंगे कहाँ की फ्लाइट मिल रही है। द रॉन्ग वे ऑफ डूइंग इट, राइट? अगर फाइनेंशियल प्लानिंग की बात करें तो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस कैसे हुआ? इफ लेट्स से आई वांट टू क्रिएट माय फाइनेंशियल प्लान टुडे, तो व्हाट इज द स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस कि ये सब करो स्टार्टिंग से, सो योर फाइनेंशियल प्लान इज क्रिएटेड? एंड एक यंगस्टर अभी देख रहा है तो उसको फाइनेंशियल प्लान क्रिएट करना है, तो कैसे स्टार्ट कर सकते हैं? I can try. So, yani, if you think about financial plan, we say that you are giving us information in 5 different sheets. If you think about it, one is your income. So you know today's income. It may be you are doing a gig sort of job, so you are unsure. मैं कंसल्टेंट हूँ तो मुझे कभी 2 लाख मिलेंगे, नेक्स्ट मंथ 0, देन आई विल गेट 50,000। तो यू पुट योर बेस्ट एस्टिमेट कि कितना इनकम आ रहा है और कभी आ रहा है। And is it coming regularly? So if your salary, it is easy. That is one part. The second is your expense. And I think youngsters को ये इसमें काफ़ी सारी दिक्कत होंगी, क्योंकि मुझे मेरे हिसाब से मेरे क्लाइंट को ये जो 5 चीज़ मैं बता रहा हूँ उसमें से एक्सपेंस और एक दूसरी आइटम है जहाँ पे बहुत दिक्कत है टू फाइंड द राइट आंसर्स। तो एक्सपेंस, सो यू से आई डोंट नो, मैं पैसे आते हैं मैं खर्च कर देता हूँ, लाइफ इज़ गोइंग ऑन, राइट? बट अगर आप ब्रेक डाउन करेंगे कि इतने मेरे खाने पीने में जाते हैं, इतने एंटरटेनमेंट में जाते हैं, इतने मेरे पेट्रोल में जाते हैं, रेंट में जाता है, यू विल गेट सम आइडिया, कॉन्सेप्ट ऑफ बजटिंग, दैट ये अगर रेंट का 8 साल तक चलने वाला है, उसके बाद मैं घर खरीदने वाला हूँ, तो रेंट बंद हो जाएगा। ईएमआई शायद शुरू होगा लेकिन रेंट बंद हो जाएगा। तो एक्सपेंस इज द सेकेंड पार्ट। द थर्ड पार्ट इज वेयर हैव यू इन्वेस्टेड।
अगर ये हम पूछते हैं तो इसमें भी एडवांटेज ये होता है कि पीपल हैव दिस हैबिट ऑफ कलेक्टिंग. मेरे अंकल ने बताया ये अच्छा है तो मैंने ये खरीद लिया. मेरे नेबर को ने इसमें पैसा बनाया तो मैंने उस पे भी इन्वेस्ट किया. मेरे कॉलीग ने ये बताया, ये फाइनेंशियल एडवाइजर ये पॉडकास्ट सुन के बताया ये तो मैंने ये खरीद लिया. बट इट्स ऑल बिट्स एंड पीसेस, इट इज़ नॉट कंसोलिडेटेड. तो पुट डाउन ऑल व्हाट यू हैव इन्वेस्टेड. अगर किसी का फिक्स डिपॉजिट है और मैच्योर हो रहा है, या बॉन्ड खरीदा है, या कुछ भी है जो मैच्योर हो रहा है और कब मैच्योर हो रहा है, तब तक कितना कितना इंटरेस्ट मिल रहा है, वो सब लिखिए. तो इन्वेस्टमेंट हो गया तीसरा. चौथा लोन. अगर लोन है तो कितना ईएमआई, व्हाट इज़ द रेट ऑफ इंटरेस्ट. बिकॉज आप क्वेश्चन पूछेंगे कि मेरे पास पैसे है तो लोन रिपे करूँ या इन्वेस्ट करूँ. तो वी विल नीड दैट इन्फॉर्मेशन. एंड द फिफ्थ, यहाँ पे काफ़ी सारी दिक्कत है, व्हाट इज़ योर गोल या उद्देश्य क्या है, जो हर्ष बता रहे थे. पीपल आर नॉट थॉट थ्रू. और स्पेशली 18, 20, 30 ईयर ओल्ड बोलेंगे रिटायरमेंट के बारे में मुझे सोचना ही नहीं है. For sure. If they are not married, they are not thinking children's education. They are not even thinking of, what they need to support the household. They probably, if they are living with parents, then मेरे घर का खर्चा नहीं है, मैं तो आता हूँ जाता हूँ, कपड़े धुल जाते हैं, खाना मिल जाता है और I continue life. So the goals become very important. और ये आइटम जो है वो every stage of life पे needs to be revisited. तो सिंगल हो, यू आर लिविंग विद पेरेंट्स, इट्स डिफरेंट गोल्स. वंस यू आर ऑन योर ओन, अलग गोल्स होंगे. आप शादीशुदा जब भी हो जाते हैं तभी अलग होते हैं, बच्चे होते हैं तो अलग होते हैं, पेरेंट्स एजिंग है तो अलग होते हैं. तो यू हैव टू कीप रिव्यूइंग. इट इज़ नॉट दैट फाइनेंशियल प्लान एक दफ़ा कर दिया, बंद कर दिया और हो गया. मैंने एग्ज़ाम, सीए का एग्ज़ाम मैंने रटा और एग्ज़ाम दे दिया और सीए बन गया, एमबीए बन हो गया. It is not only that, it is continuous. So that I think is the starting point actually. And then talking to people of the whole journey. Because आपको फाइनेंशियल प्लान 1 साल, 2 साल, 1 महीने, 2 महीने के लिए तो नहीं करना है. You have to do for not also 1 या 2 decade. You are talking about 1-2 PDs. So it is really long. And sometimes you don't want to think long term. So ऐसे नहीं बता रहे कि आप अच्छा नो यू आर 28 and you have all these big goals, आप खर्चा ही मत करो, don't go out. Of course you must go out. Some money you must spend, but some money at least keep for longer term. And that वो discipline करना ज़रूरी. So that is the first step in my mind. But it's a long first step. या आई थिंक अभी बहुत सारे लोग हैं जो मतलब फाइनेंशियल प्लानिंग करते ही नहीं है. मतलब यंगस्टर्स का वही है कि जो मैं भी बात करता हूँ 22 ईयर ओल्ड, दे डोंट इवन नो. नहीं, even older people don't do so. Even yeah, don't exactly. This is not that a, younger. in fact, हाँ. मैंने जो देखा, अब हाँ. हमारे क्लाइंट्स हैं, यंगर पीपल ऑफ कोर्स हमारे पास बहुत ज़्यादा नहीं है. जो भी यंगर क्लाइंट्स हैं वो हमारे एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स के बच्चे हैं. ओके. एंड वन थिंग, एटलीस्ट ये बहुत ही छोटा सैंपल है, एनेक्डोटल एविडेंस बता रहा हूँ, लेकिन ये जो बच्चे हैं दे आर फार स्मार्टर देन देयर पेरेंट्स. दैट इज फॉर श्योर. दे आर थिंकिंग, दे आर आस्किंग अस क्वेश्चंस दैट मेक अस थिंक. सो आई मीन ये जो हमारा एक मन में हमने धारणा बना रखी है कि ये जो जनरेशन है ये इररिस्पॉन्सिबल है, सोचती नहीं है, ये एटलीस्ट मेरे एक्सपीरियंस में सही नहीं है. I agree. ये जनरलाइजेशन है. ये जनरलाइजेशन अप्लाई सबको होता है, चाहे वो यंग हो चाहे इतने यंग ना हो. सो मतलब पहली बात ये, अगर आपका जैसे सवाल लें कि भाई फाइनेंशियल प्लानिंग कैसे करें, तो मेरे हिसाब से ये एक ऐसी एक्टिविटी है जो खुद करना. मेरा खुद का फाइनेंशियल प्लान, आई वुड नॉट अटेम्प्ट टू डू इट ऑन माई ओन. ओके, I will have sit with my colleague because it is something जिसमें मुझे एक दूसरे निष्पक्ष आदमी का दृष्टिकोण चाहिए. ओके, बहुत जरूरी है ये, क्योंकि उसको वो दिखता है जो मुझे नहीं दिखता. चाहे मैं कितना ही एक्सपर्ट हूं, लेकिन मुझे भी वो नहीं दिखता. तो मेरे ख्याल से अब ये जरूर हो सकता है कि भाई हर्ष तो इधर पॉडकास्ट में आके अपना धंधा बढ़ा रहा है. ओके, लेकिन किसी के पास भी जाइए, आप ऑनलाइन कर लीजिए. ओके, लेकिन एक थर्ड पार्टी होना
जो आपको सही सवाल पूछे और आपका ध्यान उस तरफ ले जाए जिस तरफ शायद आपने ध्यान नहीं दिया हो। जैसे जो यंग लोग हैं उनका खास करके मेरे कोई गोल्स नहीं है। अच्छा, आपके कोई गोल्स नहीं है, क्या करना है आपको? अच्छा, ये जो पैसे आप बोल रहे हो कि इतने पैसे मैं इन्वेस्ट करूँगा, क्या आप करोगे इन पैसों का? कभी ना कभी तो इस्तेमाल करोगे। म्यूचुअल फंड में तो नहीं रख दोगे, शेयरों में तो नहीं रख दोगे, इसको कभी तो यूज़ करोगे। क्या चीज़ में यूज़ करोगे? तो अब वो बोलते हैं कि अच्छा, मुझे एक और कोर्स करना है, मैं नहीं चाहता कि मेरे पेरेंट्स उसके लिए पेमेंट करें, मैं हो सकता है मैं खुद ही पेमेंट करना। देयर, दैट्स योर गोल, दैट्स अ गोल, राइट? मुझे स्कूटर खरीदना है, मुझे गाड़ी खरीदनी है, दैट्स अ गोल, मुझे अपना घर खरीदना है। मैं श आजकल शादी के लिए तो मतलब मेरे ख़्याल से बहुत ज़्यादा यंग लोग शायद रेडी नहीं होते, लेकिन शादी करनी है अगर, तो उसपे भी पैसे खर्चे होंगे। सारा का सारा पैसा मैं नहीं चाहता कि मेरे पेरेंट्स खर्चा करें। तो अगर आप किसी भी आदमी से पूछेंगे, यंग भी हो, तो सवाल पूछने से एंड में उसके कहीं न कहीं दबे हुए गोल्स हैं और उसको उभार के निकालना, वो एक स्किल है, जिसके लिए आपको थर्ड पार्टी चाहिए। दैट इज़ Yeah, I would like to contribute something over and above what they said. ये यंग ऑडियंस है, सो सर्टेन बेसिक्स ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग, मैं फाइनेंशियल प्लानर के पास आप जाएंगे तो वो सब कर लेंगे, लेकिन खुद 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 से आपको करना है। सो देर आर सर्टेन बेसिक्स अपार्ट फ्रॉम व्हाट दे से। सो एक चीज़ है, लिक्विडिटी आपको बिल्डअप करना है। सो लोग क्या करते हैं, उनका आई मीन द मोमेंट दे गेट इनटू वर्क, दे वांट टू डू लॉट ऑफ थिंग्स। आई मीन उसमें करा भी कुछ नहीं है, आई मीन दे कैन डू मल्टीपल थिंग्स, बट द ओनली प्रॉब्लम इज सब कुछ एक साथ करना है तो दे डोंट हैव द इनकम टू सपोर्ट। सो क्या होता है, वो क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं या कोई लोन उठाते हैं, सो लोन स्पाइरल में चले जाते हैं। सो द फर्स्ट थिंग विच वी सजेस्ट यंग पीपल is to first build a certain bedrock of liquidity. So, I mean, uh, I cannot really suggest a certain specific amount, but I would say maybe a 2 lakh amount will be a reasonably good bedrock. Normally, young लोग क्या चाहते हैं, I mean, at the beginning of the career, they want to change the phone. उनको कुछ लैपटॉप खरीदना है, उनको कुछ ट्रैवल करना है, रिलेटिव्स, पेरेंट्स या किसी और को कुछ गिफ्ट करना है। वैसा बहुत सारा छोटा-छोटा चीज़ है। It is not like buying a house which is going to cost 1.5 crores, but 20,000 here, 50,000 here, 40,000 here. So you have to first build a liquidity. Okay, that is the first thing. So we don't talk about investments for initially. We say you first build the liquidity. वो एक चीज़ है, पहला चीज़। सेकेंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इज, आप जितना भी कम कमाते हो, पहला कम से कम 10% बाजू में रखो, इन्वेस्ट करो। ओके, शायद आपको रिटायरमेंट के लिए अभी इन्वेस्ट नहीं करना है, उसके बारे में सोचना भी नहीं है, ठीक है, वो ठीक है, लेकिन इन्वेस्टमेंट तो करो लॉन्ग टर्म के लिए। वो रिटायरमेंट के लिए हो या अपने शादी के लिए हो या किसी और के लिए गोल के लिए हो, वो बाद में देखा जाएगा। सो कम से कम 10% तो इन्वेस्ट करना ही करना है, इवन इफ यू आर अर्निंग 20,000, दैट रूल अप्लाइज। द थर्ड थिंग इज अगेन connected with the loan and loan spiral. What we generally suggest is that आपको वैसे लोन उठाना ही है, ओके, और आपको ये मैकबुक खरीदना है, ओके। सो देन मैं क्या बोल रहा हूँ, सो जब लोन उठाते हैं आप ईएमआई तो आपको भरना ही पड़ेगा। सो व्हाई डोंट यू स्लाइटली पोस्टपोन दैट एंड सेव दैट मनी एंड बाय विदाउट एनी गिल्ट एंड एन्जॉय द प्रोडक्ट, आई मीन फुल 100%। So first save, then spend, instead of first buying and having a loan problem. So these are some very yeah. basic things that we normally tell them. So sequence the goals. Yeah. That is the last thing that we tell. So आपको 4-5 चीज़ आपको करना है, तो सब कुछ 6 महीने में या 1 साल में मत करो, 3 साल थोड़ा थोड़ा एक्सटेंड करो, 4 साल एक्सटेंड करो, सब कुछ करो, लेकिन पहले सेव करके उसके बाद जो आपको स्पेंड करना है वो स्पेंड करो, दैट वे।
Without इसमें any guilt, you can enjoy. आई थिंक बहुत सारे यंगस्टर्स बाय नाउ पे लेटर करके जो कॉन्सेप्ट है उस पे भी काफी सारे लोग लोन लेते हैं एंड देन दे बाय प्रोडक्ट्स एंड पे लेटर यूजिंग BNPL, राइट? So you should reverse it. Pay now, buy later. In Hmm. fact, a very interesting one of the RIAs has started that. Okay, अच्छा. which is pay now, buy later. आप पहले सेविंग करो और उन्होंने प्रोडक्ट कंपनीज के साथ टाई अप किया है, उसके हिसाब से आप सेव करिए और फिर जब आपका वो पैसा जमा हो जाएगा तो उनका प्रोडक्ट कंपनीज के साथ टाई अप है, वो आपको डिस्काउंट देंगे, वो उस तरीके से पैसे बना रहे हैं. वाओ, Okay. इंटरेस्टिंग. So that's an interesting way to look at it, and that's a very good thing. I mean, it's a good slogan, right? Pay now, पैसे आज दो, खरीदो बाद. I just reverse the whole. So one of the things we used to tell clients कि आप more than 1 महीने का एक्सपेंस आप बैंक अकाउंट में मत रखो. तो अगर आपने इन्वेस्ट कर दिया, अगर लिक्विड फंड में भी इन्वेस्ट कर दिया है और आप मॉल में जाते हो देखते हो कि अरे ये नया फ़ोन आया मुझे खरीदना है, आपके पास वो डेबिट कार्ड स्वाइप करके लेने की कैपेबिलिटी नहीं है, तो आप मत लो तभी और मेक श्योर यू रिडीम द मनी एंड नेक्स्ट टाइम यू गो टू द मॉल यू बाय. बट ये अगर आप करते हो तो आपको पता चलता है 1 हफ्ते पहले नहीं वो तभी शौक था लेकिन वो ज़रूरी तो नहीं है, क्यों खरीदूँ? नहीं ज़रूरत है. तो थोड़ा पोस्टपोनमेंट करने से ऑटोमेटिकली आपको पता चलता है आपको आपकी ये खरीदने की ख्वाहिश रियली डीप है या फिर इम्पल्सिव बाय था. नथिंग रॉन्ग विथ इम्पल्सिव बाय, बट अगर आप लिमिट में पैसे रखेंगे और बोलेंगे मैं डेबिट कार्ड ही यूज़ करूँगा ये खरीदने के लिए, तो पैसे है ही नहीं तो डेबिट कार्ड यूज़ नहीं हो सकता है. ये क्रेडिट कार्ड पे मैं बाय नाउ पे लेटर इज़ क्लासिकल प्रॉब्लम ऑफ दैट. तो ऑब्वियसली इट इज़ वेरी गुड फॉर कंज्यूमर कंपनीज़. आई थिंक आजकल के काफी जेनजीज आर टेकिंग लोन्स फॉर इवन लेट्स से अटेंडिंग कॉन्सर्ट्स, फिर उसके Absolutely. बाद ट्रैवल पे लोन लेते हैं, Absolutely. EMI पे लोन लेते Absolutely. हैं. करेक्ट. एंड बहुत आप जैसे बता रहे थे डेट ट्रैप में स्टार्टिंग से ही फंस जाते हैं. इवन इनफैक्ट लाइक वन ऑफ माय एम्प्लॉयज यूज्ड टू वर्क विद मी, उन्होंने मैकबुक 3.5 लाख का लिया एंड वो EMI पे लिया था एंड वो आई थिंक 1.5 साल या 2 साल EMI पे लग गए थे पूरा लोन चुकाते चुकाते. तो आई थिंक आप सही बोल रहे हो कि बहुत जल्दी डेट ट्रैप में फंस जाते हैं. डेट ट्रैप में न भी फंसे तो इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाते बिकॉज वो सारा पैसा पहले ही खर्च कर देते हैं. सपोज यू कैन अफोर्ड द EMI, ऐसा जरूरी नहीं है कि डेट ट्रैप में फंस गए हो. क्योंकि जो मतलब अमीर घर से आते हैं वो डेट ट्रैप में नहीं फंसते, उनके पेरेंट्स हेल्प कर देंगे, लेकिन उनका खुद का इन्वेस्टमेंट करने का जो एबिलिटी है वो आगे की भी एबिलिटी आज ही निकाल देते हैं. तो आप बोल रहे हो कि डेट लेना इज नॉट बैड पर से, मतलब डेट ले सकते हैं बट डेट ट्रैप में नहीं फंसना चाहिए. नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा, मैं सिर्फ यही कह रहा हूँ कि जहाँ तक हो सके हाँ. क्रेडिट कार्ड इज़ बहुत अच्छी चीज़ है सिर्फ इमरजेंसीज़ के लिए. मैंने जो मेरा वेंचर था वो क्रेडिट कार्ड पे ही सर्वाइव हुआ. मेरी लोआई से मुलाकात भी उसी संदर्भ में हुई थी 1999 में, 2000 में, 2000 .com में, जब ये .com में थे, मैं भी .com में था. ओके, तो credit card is designed, okay, to make you spend more. It's very very simple. अगर आप कैश देके दुकानदार से खरीदते हो तो दुकानदार को 100 रुपए आप देते हो, उसको 100 रुपए रखने मिलते हैं. जब आप क्रेडिट कार्ड से खरीदते हो तो दुकानदार को 98 रुपए मिलते हैं, 98.5 रुपए मिलते हैं. फिर भी मेरे जैसे मारवाड़ी दुकानदार क्यों क्रेडिट कार्ड एक्सेप्ट करते हैं? तो एक रीजन तो ये है कि सभी लोग करते हैं, आप नहीं करेंगे तो आपके पास गिराई नहीं आएगी. लेकिन एक बड़ा रीजन ये है कि रिसर्च क्लियरली शोज दैट व्हेन यू स्पेंड विद क्रेडिट कार्ड यू स्पेंड मोर. देयर आर वेरी इंटरेस्टिंग बिहेवियरल एक्सपेरिमेंट्स कि आप सेम कंपनी के साथ आप रेस्टोरेंट में जाइए, सेम गर्लफ्रेंड के साथ जा रहे हैं, वाइफ के साथ जा रहे हैं, आप रेस्टोरेंट में जाइए, आप कैश से टिप देंगे तो यू विल टिप लेस. उसी कंपनी में उसी संदर्भ में जब आप क्रेडिट कार्ड से टिप देंगे तो आप ज्यादा देंगे. आदमी भी सेम है. ओके, what it does, it removes the pain of paying. There is a concept called pain of paying. Richard Thaler, the Nobel winner economist, has coined this pain of paying. तो
क्रेडिट कार्ड पेन ऑफ पेइंग निकाल देता है, तो उसको रीइंसर्ट करना बहुत जरूरी है। जो लोवाई ने अभी बताया कि आपने लिक्विड फंड में डाल दिया, अब वहां से निकालना, तो अब वो निकालने का पेन है। तो शायद हो सके कि आप वो खर्चा ही ना करें, और अगर करेंगे भी तो अब आपने सोच समझ के किया है, तो वो खर्चा रॉन्ग नहीं होगा। तो आई थिंक द की इज not to not spend, but to spend consciously. In fact, we advise our clients in their budget to budget for indulgences. Okay. And when you budget for indulgences, you enjoy those indulgences. You don't feel guilty. वरना जैसे मुझे जूते खरीदने का शौक था, तो जूते उस समय मैं जब खरीदता था तो मुझे गिल्ट लगती थी। मैंने सोचा कि मैं अपने पैसे से जूते खरीद रहा हूं, मुझे गिल्ट क्यों लग रही है? ओके। लेकिन फिर मुझे समझ में आया गिल्ट इसलिए लग रही है कि मुझे ये लग रहा है कि शायद ये पैसे मैंने मेरे बच्चे के एजुकेशन फंड में से निकाल लिए। मैंने कैलकुलेट नहीं किया था, उस समय मैं प्लानर नहीं था। तो अगर मैंने इंडल्जेंस, अगर मेरा जो भी है मैंने उसके लिए बजट किया है, अब मैं वो जूते खरीदूंगा तो मुझे बहुत अच्छे लगते, मजा आता है, उसको एंजॉय कर पाता हूँ। वरना वो गिल्ट मुझे एंजॉय नहीं करने। सो दैट रियली इज द पॉइंट। सो क्रेडिट कार्ड यूज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? तो मैं तो यूज़ करता हूँ, बट वन थिंग आई एंश्योर कि जो क्रेडिट कार्ड का ड्यू डेट है उसके पहले पूरी की पूरी पेमेंट कर देता हूँ मैं। फाइनेंशियल सर्विसेज का एक्सपीरियंस है, तो मैं सोचता हूँ कि अगर मेरे पास शायद अभी 3 क्रेडिट कार्ड है, तीनों की बिलिंग डेट अलग है, तो मुझे पता है 5 और 14 के बीच में मैं ये क्रेडिट कार्ड यूज़ करता हूँ, क्योंकि इसकी बिलिंग साइकिल 5 तारीख से शुरू होती है, दूसरे की 14 से शुरू शुरू होती है, तीसरे की 23 तारीख से शुरू होती है। तो आई हैव 3 कार्ड्स, आई विल रोटेट देम। अब मैं फर्स्ट थिंग देखता हूँ, अच्छा मैं खरीद रहा हूँ, ये डेट क्या है आज? तो घड़ी घड़ी पे अभी डेट देखते हैं, तो मैं घड़ी पे देख लेता हूँ, अच्छा आज कौन सी तारीख है, आज 7 तारीख है या 10 तारीख है या 15 तारीख है, तो ये कार्ड मैं यूज़ करूँगा। तो ऑटोमेटिकली आई एम ट्राइंग टू मैक्सिमाइज माय क्रेडिट, बट आई नो दैट ऑन ड्यू डेट इट इज़ देयर एज अ रिमाइंडर 5 डेज बिफोर दिस इज कमिंग अप, लुक एट इट, पे इट। बट आपके एक्सपीरियंस में भी ऐसे हुआ है जिन्होंने कहा कि यू आर स्पेंडिंग मोर बिकॉज ऑफ क्रेडिट कार्ड? Possibly I am. Maybe sometimes you reach that stage where it doesn't You don't matter whether care. you spend 18,000 or 20,000 on something. Then you get there. But I think very important is discipline in all of this. You know, all the examples that even Harsh spoke, Suresh has spoken. Agar you don't have a method, a process, I think we call it discipline, because I think we all enjoyed when we are watching a cricket match and we watch Sunil Gavaskar hit straight drive or Sachin Tendulkar hit cover drive. But you ask them how much they have practiced. And then you go and see the same cover drive and say, wow, fantastic. It's actually so boring, na? Because they are only hitting cover drive. Otherwise, short ball aaya to they duck. They are not touching the ball outside off stump. तो boring game हो गया. But you enjoy it because अरे वो artistic, it is so classy. But it is boring, it is repetitive, and that's why it is successful. I think it's the same thing is true in investing. But on credit cards, I have a very strong view. I mean, of course, not for low I, okay? Because, of course, you can afford to spend, Yeah. okay? But even, say, I don't use credit cards. I have credit cards. I don't use them. I only use them for booking international tickets because it's a big amount, and I, not because of. In fact, that is one, I mean, I was about to come to that. But coming back for the audience we are speaking to, okay? I would advise, do not use credit cards. Okay. I would make it very strong. No amount of discipline. All of us have gone through a phase where we have overspent on credit cards. We fortunately had parents who could sort of bail us out. I had, at least. Okay. And learnt a lesson. But this tendency to spend more is the bedrock on which the credit card industry is built. तो आप क्यों यूज कर रहे हो फ्लाइट टिकट्स बुक करने के लिए? वो अमाउंट इतना ज्यादा होता, मैं मेरे बैंक अकाउंट में इतने पैसे रखता ही नहीं। ओके। तो अब टिकट बुक करनी है
उसके पहले लिख, so I will make sure I don't do impulsive spending. That is what you need to protect against. So फ्लाइट टिकट्स में मैं क्या इम्पल्सिव स्पेंडिंग करूंगा? मुझे कहीं जाना है, उसकी फ्लाइट टिकट्स बुक करनी है और मैंने एडवांस में डिसाइड कर रखा है मैं बिजनेस क्लास खरीदूंगा कि इकोनॉमी खरीदूंगा, तो क्रेडिट कार्ड विल नॉट मेक मी स्पेंड मोर. And I don't do it for cashback points. A cashback points. I have had a client who said he will pay my fees by credit card because वो cashback point मिलेगा. मैं बोला मैं पूरा लेसन तेरे को दे रहा हूँ कि क्रेडिट कार्ड मत यूज कर, और तुम मेरी ही फीस क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करेगा. ओके, तो मैंने पूछा अच्छा भाई कहाँ से आती क्रेडिट कार्ड के ये जो कैशबैक पॉइंट है, कहाँ से आते हैं? आप इसको गणना कर लीजिए. इश्यूअर, क्रेडिट कार्ड इश्यूअर टिपिकली मेक्स अबाउट 0.75, करीबन 1.5% एक्विजिशन कॉस्ट होता है. ओके, इट इज डिवाइडेड अप इनटू 3 पार्टीज. जिसका पॉस है जहां पे आपने खरीदा, वीसा मास्टर कार्ड जो नेटवर्क्स हैं, एंड द इश्यूअर क्रेडिट कार्ड इश्यूअर. क्रेडिट कार्ड इश्यूअर मेक्स द हाईएस्ट अमाउंट, राइट? तो उसमें से वो थोड़ा से पैसे आपको वापस दे देता है. अच्छा, उसको ज्यादा दिखाने के लिए वो क्या करता है कि जो लोग ज्यादा खर्चा करते हैं उनको डिस्प्रोपोर्शनेट देता है. ओवरऑल ही गिव्स इट ओनली फ्रॉम व्हाट ही मेक्स. अच्छा, आप ज्यादा पॉइंट्स करने के लिए क्या करोगे? वही जो वो चाहता है, आप ज्यादा खर्चा करो. ओके, तो कैशबैक पॉइंट ले लिए आपने, लेकिन जो चीज खरीदी उससे वो आपके काम की है कि नहीं है? मतलब आर यू परचेजिंग समथिंग दैट इज विद दैट मनी दैट इज वर्थ इट फॉर यू? बिकॉज 1 रुपये के लिए आप 100 रुपये खर्चा कर देंगे तो 99 रुपए का लॉस हुआ या 1 रुपये का फायदा हुआ? ओके, और 1 रुपया होता नहीं है, 4 आने होते हैं. 1 रुपया वो बताते हैं, होते 4 आने हैं. और मैंने तो सारे पैसे, मेरी कंपनी ने सारे पैसे क्रेडिट कार्ड बेच के कमाए. ओके, इसलिए मुझे पता है. आई एम अ रिफॉर्म्ड सिनर. It is like people investing in stocks and saying इसका डिविडेंड बहुत अच्छा आता है, इसके लिए मैं इन्वेस्ट करता हूँ. मैं बोलता हूँ आप ज्यादा इन्वेस्ट करेंगे तो ज्यादा डिविडेंड मिलेगा ही, लेकिन आपके खुद के पैसे हैं, यानी उसके बाद जो डिविडेंड पे होता है नेक्स्ट डे वो शेयर प्राइस उतना ही अमाउंट से कम हो जाता है. पहले म्यूचुअल फंड में होता था डिविडेंड पे आउट, तो भी हाँ डिविडेंड पे आउट ज्यादा है तो मैं कर रहा हूँ. बट सर आई हैव अ पार्शियली डिफरिंग ओपिनियन हियर. जैसे अभी कुछ कुछ कार्ड्स, अगर मैं खुद का एग्जांपल देता हूँ, एचडीएफसी बिज ब्लैक है, जीएसटी के जितने भी पेमेंट्स होते हैं मैं उससे करता हूँ और मेरे को सर्टेन परसेंटेज कैशबैक मिलता है. नाउ जीएसटी पेमेंट इज अ स्टैट्यूटरी पेमेंट, दैट इज नॉट एन इम्पल्सिव पेमेंट एट ऑल. उससे कैशबैक मिलता है तो मुझे लगता है कि चलो मैंने अगर 1 लाख 1.5 लाख का जीएसटी पे किया तो उस पर मेरे को सर्टेन अमाउंट ऑफ कैशबैक मिला विच आई कैन यूज इट समवेयर एल्स. सो इन दैट केस आई फील कि क्रेडिट कार्ड होना मेरे लिए सही है, बिकॉज वो मेरे लिए कोई एक ऐसा अननेसेसरी स्पेंड नहीं है. तो वो केसेस में आप क्या कहोगे? So let me change my statement a little bit. Okay, the statement is this now. Okay, as long as you ensure that it is not an impulsive purchase. Okay, credit cards are fine. Free credit, like he does it, right? It's free credit, right? GST can't possibly be impulsive. Yeah. और GST पे कैशबैक बहुत ज्यादा दिन नहीं रहेगा. ओके, दैट्स अ प्रमोशनल गिमिक. ओके, बिकॉज उस पे वो कमाते नहीं है, क्रेडिट कार्ड कंपनी नहीं कमा रही है. ओके, इफ दे आर गिविंग इट टू यू, दे आर गिविंग इट आउट ऑफ द फी दैट दे आर चार्जिंग यू. दोस क्रेडिट कार्ड्स वोंट बी फ्री. Okay, you would be paying an annual fee for those credit cards. Okay, so पैसा आप ही का है सर. ओके, क्रेडिट कार्ड कंपनीज कोई धर्मादा नहीं चलाते. ओके, आप ही का पैसा आपको वापस दे रहे हैं. बट यू माइट बी फाइन बिकॉज यू डू अ लॉट ऑफ नॉन इम्पल्सिव स्पेंडिंग, एंड इफ यू आर अमंग द टॉप ब्रैकेट ऑफ नॉन इम्पल्सिव स्पेंडर, यू कैन बेनिफिट एट द कॉस्ट ऑफ दोज हु डू लेस बट इम्पल्सिव स्पेंडिंग. सो ये इनइक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन है. बट एज सो फॉर यूजर्स द key principle is impulsive spend no. Okay, and I am assuming that the viewers here are not as careful as Loai is or as you are, and therefore a much better non-nuanced, which is what influencers like to do. हम लोगों को आदत है हर चीज में किंतु परंतु लगाते हैं. लेकिन मतलब
non-nuanced is very clear. Do not spend on credit cards. सुरेश तो सर मेरा आप एक आगे पर्सपेक्टिव भी है हाँ। इसमें. So my thing is very clear. I don't have a credit card. Okay. So Wow. and I'll tell you why. I'll tell you why. Wow. See, the point is became the now. happiest. Ah, Yeah. So it's not that I look at credit card as bad or something like that. I always look at simplicity. I want to simplify. I have only one bank account. I have only one Demat account. I don't have credit cards. So my thing is very, very simple. I have a few mutual funds and I have one NPS. So that's it. So it's super simple. So I believe in simplicity in terms of the way I handle finances. आई थिंक दे हैव कंट्रीब्यूटेड इनफ. सो उन्होंने जो बोला है, सी एक्चुअली घूम फिर के आपका ही पैसा आपको आ रहा है. सो इट्स अ ज़ीरो सम गेम. किसी को थोड़ा ज़्यादा मिल सकता है, किसी को थोड़ा कम मिल सकता है. बट माई ओनली पॉइंट हियर इज दैट सपोज आई फॉरगेट समथिंग, okay, somewhere to pay the credit card bill, then again I will get on some 36%, okay, per annum. एंड सम पीपल काउंटर दैट. वो बोलते हैं नहीं नहीं, मेरा डायरेक्टली मेरा अकाउंट से ही वो जाता है. आई ऑलरेडी ऑटो डेबिट वगैरह मैंने सेटअप किया. दैट इज इवन मोर डेंजरस बिकॉज आई हैव एक्सपीरियंस दैट वंस अपॉन अ टाइम. सो जो रॉन्ग बिलिंग जो होता है, कभी एक बार हुआ था, उसको रिवर्स करने में मुझको 3-4 महीना लगा वो रिवर्स करने में. एट दैट टाइम ओनली आई डिसाइडेड ये चक्कर मुझे चाहिए ही नहीं है. So how much am I saving in this whole thing? And today with UPI and today with the online banking, I don't require anything. Wallets are there, everything is there. So you spend with your own money. Ultimately घूम फिर के क्रेडिट कार्ड तो फ्री नहीं है. अपना ही पैसा बाद में देंगे आप, क्रेडिट पीरियड आप एंजॉय करेंगे. सो उसके लिए आई मीन यू हैव टू कीप ट्रैक ऑफ दैट. एंड आई डोंट वांट टू कीप ट्रैक ऑफ दैट. आई हैव बेटर थिंग्स टू डू. दैट इज हाउ आई लुक एट माई सेल्फ. सो ये करना ही नहीं है, ये करना ही नहीं है हमको. So focus on your life, focus on what is really important for you to get ahead, and don't fall into all these gimmicks. It works fantastically well for an ICICI bank or a Visa or somebody like that. Not really for you. So that is the message I want to give to the audience. I mean, don't get into this trap. That's a good point. there is Very this good point. whole industry out there कि कैसे लाइफ में आप मैक्सिमाइज करें. ओके, क्रेडिट कार्ड पॉइंट्स मैक्सिमाइज करें, रिटर्न्स मैक्सिमाइज करें. और मेरे बहुत से दोस्त हैं जिनसे मैं यही मेरा आर्ग्यूमेंट है कि ये मैक्सिमाइजेशन के चक्कर में, ओके, आप जो नॉर्मल चीजें, बिकॉज मैक्सिमाइजेशन करने के लिए एफर्ट लगता है, तो वो एफर्ट आप मैक्सिमाइजेशन में लगा रहे हो. एंड आई मीन सुरेश इज माय मेंटोर. आई मीन दिस प्रोफेशन because of Suresh. Okay, and I've acknowledged that publicly before, and I'm acknowledging it again. And I love this his concept of simplicity. Okay, I think simplicity is an underappreciated parameter. Okay, we ensure that you, like when we do it for clients, the number of schemes, we do not want it to go beyond the point, because diversification, I mean, of course there might be other questions around this, but my point is simplicity should be a cornerstone, and maximization is an overappreciated parameter. I would not go out of my way to maximize. I would much rather maximize the potential of my life rather than Correct. maximizing the potential of my credit card. No, and I think that we see this with clients. In India, there is this propensity to buy real estate. And this is for child A, this is for child B, this is in case we separate, this is in case we have neighbors coming, whatever, right? I have multiple properties. Now I'm remembering simplicity, what Harsh said, because as the people get older, now they are starting to say, oh, actually, child A is in US, child B is in Australia. We are together only, and I don't need rental income. I don't need a 4-bedroom bungalow. I don't even go to one part of that bungalow because now we two are alone. So then they are trying to now make it simple, because I know I did it with intention of my next generation,
they are not going to have the same diligence or the time or inclination to do what I did. And therefore, I want to simplify. So let me start selling, start reducing. And I think it's a very good point. And I'm hoping to learn from both these guys today that I should also simplify and not have some exotic stuff. Although going. he is senior to us, Ah, it I have to state that. But this is mind blowing how clients do what I think Richard Thaler has spoken about this, mapping in their minds, the boxes that they create in their mind. कि अब जैसे कई क्लाइंट्स हैं, हमारे क्लाइंट्स हैं जो 50 के हैं, 55 के हैं, ओके? वो अपनी बहू के लिए ज्वेलरी बना रहे हैं। बच्चा अभी 15-16 साल का है, पता भी नहीं है शादी भी करेगा क्या, ओके? लेकिन बहू के लिए अभी से ज्वेलरी बन रही है। अच्छा भई, अब वो शादी कब करेगा? 10 साल बाद करेगा, 15 साल बाद करेगा, आप लकी हो तो करेगा, ओके? अब उसकी जो बहू आएगी, वो ये वाली ज्वेलरी लेगी, ओके? आर यू श्योर? मतलब आपको क्या चाहिए? ज्वेलरी देने के लिए पैसे चाहिए। तो मतलब अगर आपको दूध चाहिए तो गाय आप आज नहीं खरीदेंगे ना। मतलब मिलती है ना मार्केट में, आपको मतलब दूध खरीदने के पैसे चाहिए। सो ये मतलब रियल एस्टेट के मामले में कि ये वाला बच्चा आपका कहाँ रहेगा? उसमें एक लालच है, ओके? ये लालच है और हम सब एज़ पेरेंट्स वी हैव गॉन थ्रू इट कि मेरे बगल वाला घर ले लूँ, तो इस चक्कर में मेरा बच्चा है ना मेरे पास में रहेगा, ओके? दैट इज़ द अनस्टेटेड डिज़ायर, ओके? तो वो हम उनको बोलते हैं कि उसके लिए कर रहे हो, करो, कॉन्शियसली करो। आई थिंक द होल गोल ऑफ फाइनेंसिंग, होल गोल ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग, इसकी जो भी डिसीजन ले रहे हो, कॉन्शियसली लो, ओके? ये चक्कर मत चलाओ। अगर आप बगल वाला घर इसलिए ले रहे हो कि उस चक्कर में आपका लड़का रहेगा, तो एनालाइज दैट, ओके? कि रहने के चांसेस क्या हैं? आप रहे थे क्या अपने पेरेंट्स के पास में, ओके? और आज क्या मतलब अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, बच्चे शहर टू शहर चेंज करते हैं, कंट्रीज टू कंट्री चेंज करते हैं, तो पैसे चाहिए आपको, इवन बगल में भी रहना है तो अल्टीमेटली पैसे चाहिएंगे, उस समय खरीद लेना। आप कहाँ रहेंगे वही नहीं पता है, तो बच्चों को लिए बगल में ले लोगे तो बेचते समय 2 बेचने पड़ेंगे, 1 नहीं। तो आई थिंक पीपल जस्ट डोंट थिंक थ्रू दीज थिंग्स, their whole reason or logic for doing something. And I think our role as financial planners is to make sure कि आप जो भी कर रहे हो आप सोच समझ के करो। I think that really is our role. बहुत लोग आई थिंक ये भी एक जैसे रियल एस्टेट की बात कर रहे थे तो बहुत लोग लेट्स से होम लोन जल्दी लेते हैं उनके लाइफ में एंड घर जल्दी खरीदना चाहते हैं जैसे आपने बताया प्रोपेंसिटी टू बाय रियल एस्टेट इज क्वाइट हाई सो इसमें अगर मैं होम लोन की बात करूं एंड इसमें अगर मैं बात करूं कि कैसे इसको प्लान करें कि होम लोन अगर लेना है तो व्हाट प्रपोर्शन ऑफ माय सैलरी शुड आई टेक इट एज अ लोन इंटरेस्ट कितना होना चाहिए ईएमआई टू इनकम का रेशियो कितना होना चाहिए सो कैसे डिसाइड करें कि कौन सा होम लोन लेना है और कैसे डिसाइड करें कि कितना अमाउंट का होम लोन लेना है? So I mean होम लोन का जहां तक सवाल है, होम लोन is a means to an end. Any loan is a means to an end. So the decision is not about the loan. The decision is can you afford the house that you are taking on loan. तो अगर रहने के लिए ले रहे हो, ओके, तो आप अफोर्ड कर पा रहे हो कि नहीं वो आपकी सैलरी से पता चल जाएगा। आप इन्वेस्टमेंट के लिए ले रहे हो तो वो एक कंप्लीटली डिफरेंट केटल ऑफ फिश है, राइट? तो ये अगेन ये बहुत पॉपुलर है कि भाई ईएमआई शुड बी 40% 50%, ऑफ योर इनकम ओके, गुड, ग्रेट, दैट्स अ गुड रूल ऑफ द थंब। व्हाट इट डज नॉट हैव is ki should you be buying that home at all? Does the buying make sense? Sure, your income can afford it, but that is taking away certain other opportunities, no? That money could have been doing something else, right? That does not come in this formula. And I think bringing that into that formula, वो बहुत जरूरी है कि ये अच्छा आपने जैसे कहा कई लोग इसलिए ले लेते हैं कि नहीं तो बच्चा खर्चा कर देगा, तो उसको एक काम करते हैं ना, वो पहले पुराने जमाने में बच्चों की जल्दी शादी कर देते थे कि जिम्मेदारी ले लेगा, ओके? ये एक तरीके से करीबन वैसा ही चीज है कि घर खरीदवा दो, ईएमआई लग जाएगी तो पैसे नहीं खर्चे होंगे, ओके? बट वो क्या करेगा उसका, मतलब एवरीथिंग
प्रीएम्प्ट हो जाता है, घर महंगे होते हैं, इट्स सिंगल एसेट, लॉक्स इन अ लॉट ऑफ मनी, ओके। तो मतलब करना चाहिए क्या? तो आई थिंक द डिसीजन शुड बी घर खरीदना चाहिए कि नहीं, नॉट वेदर लोन ईएमआई। फिर वो डिसीजन अगर सही होगा तो उस पे लोन का भी डिसीजन करीबन करीबन सही होगा, बिकॉज अगर वो घर आप अफोर्ड नहीं कर सकते तो ऑब्वियसली वो ईएमआई भी अफोर्ड नहीं कर सकते। तो लेट्स स्पेंड सम टाइम ऑन दैट कि घर खरीदना चाहिए या नहीं। तो कौन से एज पे आपके हिसाब से इट्स अ राइट एज कि हाँ, ये अभी घर खरीदना चाहिए? तो मेरे हिसाब से व्हाट आई हैव सीन इज़ कि आप जब भी आप घर खरीदते हो तो आप सोचते हो कि मैं यहाँ पे 10 या 15 साल एक ही जगह में रहूँगा। और वो अगर आप सोचते हो कि ये लॉन्ग टर्म के लिए मैं खरीद रहा हूँ, तो वो पीरियड है जब भी आपके बच्चे स्कूल जाने वाले हैं, टिल द टाइम दे फिनिश स्कूल, दे गो टू कॉलेज एंड नाउ दे आर गॉन। तभी आपको वो 2 बेडरूम या 3 बेडरूम या जो भी आप सोच रहे हैं कि ये घर मुझे एक ही जगह रहना है, क्योंकि स्कूल करीब रहेगा या बस सर्विस है या मैं ड्रॉप कर सकता हूँ, या फिर मैं मेरे बच्चे साथ में कम्युनिटी में ग्रो हो, या मुझे सपोर्ट सिस्टम मिले, वो सब वो 10-15 साल में वाजिब है। उसके बाद ये सब बिगड़ जाता है। उसके बाद आपको लगता है ये घर काफ़ी शायद बड़ा है, या फिर ये कन्वीनिएंट नहीं है, मेरी ऑफ़िस के लिए कन्वीनिएंट नहीं है, या मेरे जो नीड्स है कन्वीनिएंट नहीं है, ये 2 लेवल घर था, अभी मुझे चलने की दिक्कत हो रही है, बुढ़ापा आ गया है, तो मुझे एक सिंगल लेवल चाहिए। तो काफ़ी सारी चीज़ होती है कि तब आपको ये प्रॉब्लम रहता है। तो मेरे हिसाब से जो पर्सनल यूज़ के लिए है, और घर अगर जो जैसे हर्ष बताया इन्वेस्टमेंट के लिए, वो अलग ही कॉन्वर्सेशन है। लेकिन आप खुद के लिए यूज़ करते हो, तभी आपको लगता है कि ये घर मैं 10 या 15 साल तक यूज़ करूँगा, तभी वैल्यू बहुत सारी है कि काफ़ी सारी आपकी मेमोरीज़ वहाँ पे सॉर्ट ऑफ क्रिएट होती है, राइट? तो आप जो सिर्फ़ कैलकुलेट नहीं करोगे कि ये वैल्यू इतनी बढ़ी या मेरा रेंट इतना बचा, मैं पूरा जवानी यहाँ पे मैंने गुज़ारी, ये सारे एक्सपीरियंस हुए, ये हुआ था, तभी ये हुआ था, याद है जब स्कूल पहले दिन गया था, वो सब आपको आपके वो कैमरा में क्रिएट हो जाता है, मन के कैमरा में, और तभी वो अच्छा है। उसके बाद नीड्स अलग-अलग होती जाती है। तो मेरे हिसाब से मैं जो देख रहा हूँ, जो जो अभी जो एम्प्टी नेस्टर हो गए, अभी सोच रहे हैं कि अच्छा वो घर अभी मैं क्या करना चाहिए, किसके नाम पे रेंट कर दूं, कोई यूज़ करेगा, करना चाहिए ना करना चाहिए। अगर ट्रांसफ़र करना है तो तभी पता चलता है, वो खाता में रजिस्ट्रेशन में वो 2 बार 6 होना चाहिए, तो वो /6 नहीं आया है, तो अभी वो ट्रांसफ़र नहीं होगा, तभी मैं बैठ के डॉक्यूमेंटेशन ठीक करता हूँ। तो मेरे हिसाब से वो सोचना चाहिए जब भी आप कि कभी आपको घर खरीदना चाहिए। तो मेरे हिसाब से जब आप बच्चे पैदा करने वाले हो या जस्ट शुरू हुआ हो, तभी फुल बेनिफिट रहेगा। तो आप बोल रहे हो शादी के बाद घर खरीदना चाहिए देन? यूज़ होगा तभी। ओके। आप अगर 1-2 साल पहले आप खरीद रहे हो तो ठीक है, हुँ, लेकिन आपको पता नहीं फिर कितने हुँ, बच्चे यानी यानी देयर आर सम यंगस्टर्स आई थिंक इन दिस एज ग्रुप हू आर वेरी क्लियर कि बच्चे नहीं पैदा करने, देन यू नो व्हाट टाइप ऑफ हाउस, दैट्स फाइन। हुँ। देन मेबी यू डोंट वांट द अटैचमेंट कि मुझे यहीं पे रहना है, कि मुझे एक्सपीरियंस करना है, तो लेट मी ट्रैवल, लेट मी स्पेंड 2 इयर्स हियर, 4 इयर्स हियर, 3 इयर्स हियर, तो वो भी इफेक्ट आता है। देन मेबी यू डोंट वांट टू बाय द हाउस। When did you all buy your first house? दैट्स अ ग्रेट क्वेश्चन। That's a good question. I bought my first house when I moved to Bangalore, Hmm. uh, How and old were you back then? I was mid-30s. Okay. What about you? So I bought my first house when I was 26, just before I got married, but it was not my buy. My father bought it for me. So I'm just very fortunate that he bought it for me. Yeah. Left to myself, मैं खरीदता कि नहीं खरीदता, मुझे नहीं पता, तब तक मेरी थिंकिंग इतनी क्लियर नहीं थी। तो घर खरीदने में, इफ आई मे आंसर द ओल्ड क्वेश्चन,
आई थिंक बहुत से रीजंस होते हैं, ओके। और एक सोशल सिग्नलिंग का बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है घर खरीदने में। आपके पास कितने ही पैसे हों, आपके पास म्यूचुअल फंड्स करोड़ों के हैं, लेकिन वो किसी को दिखता नहीं है ना। म्यूचुअल फंड आप कान में लगा के पार्टी में नहीं जा सकते, तो वो सोने का फंक्शन होता है। देयर इज अ सोशल सिग्नलिंग टू ज्वेलरी। एंड सिमिलरली जैसे हमारे समाज में, शायद यू आर ऑल्सो अ मारवाड़ी, Right. राइट? मारवाड़ी समाज में और भी कोई कंजर्वेटिव समाज में, जब तक लड़के के परिवार में या लड़के ने खुद ने फ्लैट नहीं लिया, चाहे उसमें लोन कितना ही हो, वो दिखता नहीं है, लेकिन फ्लैट नहीं लिया, तो ही इज नॉट सेटल्ड नहीं है लड़का, तो उसकी शादी नहीं होती। यानी आधार कार्ड है कि नहीं और उस पे एड्रेस क्या है परमानेंट। So, and genuinely, I mean, and they're not wrong. Probably as a parent, if I'm given a choice for my daughter, maybe I will do the same. I don't know. Okay. That is if my daughter decides to get married. Yeah, it's security. I think It is security. it is security. बट इट इज एफिमरल सिक्योरिटी। मतलब इस सिक्योरिटी में दम नहीं है, बिकॉज अगर 80% लोन है उसके सामने, तो एक्चुअली उसकी अभी की इनकम नहीं, फ्यूचर की भी इनकम वो हो चुकी है। 20 साल तो का लोन ले हाँ, तो लिया। खरीदना कब चाहिए? जब जरूरत हो, जरूरत होनी चाहिए। Yeah. इन्वेस्टमेंट मत करिए, Yeah. जब जरूरत हो तब खरीदिए, एडवांस में मत खरीदिए। पैसे इन्वेस्ट कर लो, पैसे चाहिए ना खरीदने के लिए। इट इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम एक्चुअली परचेजिंग। ओके, तो खरीदो जब जब जरूरत हो और जब अफोर्ड कर सको। Of Zarurut means that you know You are कौन सी going to locality, stay. size, all You are that, going to you know, stay. yeah. You are going to stay, and that encompasses But I'm sure Suresh has a everything. differing view. Yeah, so not differing view that way, but जब भी लोग एकदम कम उम्र में लोग घर खरीदते हैं, दे it is social signaling. I agree with what he is saying. It is social signaling, and people do buy. There is tremendous amount of familial pressure to buy a house. So for multiple reasons. So लोग खरीदते हैं, लेकिन जब आप खरीदते हो, आजकल बॉम्बे में, I mean, what kind of price you have to pay? So anything above 1 crore typically, maybe 2 crores, maybe 5 crores. So आप अपना करियर के इनिशियल स्थिति में आप कितना आप अफोर्ड कर सकते हैं? सो यू विल प्रोबेबली बाय समथिंग इन मीरा रोड और समवेयर बियॉन्ड दैट। आई मीन, आई एम टॉकिंग अबाउट मुंबई कॉन्टेक्स्ट। सो इज दैट प्लेस रियली सूटेबल फॉर यू? ठीक है, ये मेरा घर है, घर के अंदर मैं बैठ रहा हूँ, ऑल दैट इज फाइन, बट if you are having a family of 4, 5, 6, whatever, you probably require a 3 BHK. बट आपको एक 1 BHK ही खरीदने के लिए आपके पास पैसा है, वो भी मुश्किल से। ओके, वो घर खरीद के क्या फ़ायदा हो रहा है आपको? सो वो पहले देखना है, नंबर 1। नंबर 2, इनिशियल स्टेजेस, करियर के इनिशियल स्टेजेस में आजकल, आई मीन स्पेशली पीपल हु आर गेटिंग मैरिड, they pool their money and they go for a house. I mean, this is normal these days, very normal. कुछ प्रॉब्लम नहीं है उसमें। एक ही चीज़ है, once you get into a joint kind of a thing and you have bought a house, you are losing that opportunity for that lady. Suppose she wants to leave that and bring up a family. You cannot do that. Whether you have a medical problem or you want to leave or something like that, it is just not possible. ओके, तीसरा चीज़ है, प्रॉब्लम है, व्हेन यू आर बाइंग अ हाउस इन सम फार फ्लंग सबर्ब्स, ठीक है, ये मेरा घर है, आई एम पेइंग EMI, सो आई कैन नॉट अफोर्ड टू स्टे ऑन रेंट, सो यू कीप ट्रैवलिंग। सो ये घर खरीदने के चक्कर में आपका EMI भी आप चुका रहे हैं, यू आर नॉट वेरी हैप्पी विथ योर कंडीशन, द काइंड ऑफ हाउस दैट यू आर स्टेइंग इन एंड ऑल दैट इज नॉट राइट, which brings me to when you should buy the house. So when you should buy the house is when you are reasonably sure that you can buy a house in an area of your choice. You are reasonably sure your family will be able to be in that house for a reasonable length of time. ये जो लोग बोले थे, for a reasonable length of time. अगर आपके पास बच्चे हैं, because of the school and all that, you cannot keep on shifting them. It is very going to be problematic. So when you have decided, and mostly late 30s या early 40s में ये सब होता है, ये decision होता है कि अगर मुझे travel करना पड़ा from the career point of view, I will be a weekend dad or a fortnightly dad, whatever.
but I will not disturb the family. So when you are able to take that decision, तभी आप घर खरीद सकते हैं. And I'm hoping that ये लेट 30s और अर्ली 40s आते आते आपके पास रीजनेबली गुड रकम भी होगा एंड EMI चुकाने का ये स्ट्रेंथ भी होगा. So you will be able to buy a house of the kind of house that you want in a locality of your choice, the space that you want at that time. So if you are going to do much earlier, it will be a house, especially if you are staying there, it will be generally very uncomfortable. Unlike, I mean, of course, if it is going to be like what Harsh was saying, like his father has also put in the money. So वो अलग बात है. मैं अपनी तरफ से Correct. खरीदना है तो ये मुश्किल चीज है आजकल. And I think So, most people will need to take a loan for their house unless, as you know, you have come from a status which you can avoid. So I think important to check risk. That what happens if you lose your job and you don't have a job or income for 3 months, 4 months, 6 months, 1 year. You have to test that, stress test that, and then take the EMI or the size of loan. और चूंकि ये इतना इम्पोर्टेंट पॉइंट है और खास करके जो ऑडियंस देख रही है अगर वो 30 से कम है, ओके, तो इसका पहलू सिर्फ नेगेटिव नहीं है, इसका पॉजिटिव भी, और ये क्लाइंट के केस में हमने एक्चुअली किया है. सो देयर वाज दिस, ये कपल था जिनके कुछ शादीशुदा ज़िंदगी में थोड़ी-सी प्रॉब्लम्स आ रही थी, तो काउंसलिंग भी कर रहे थे. ऑब्वियस है आजकल लोग भाड़े पे रहते हैं, वो भी भाड़े पे रह रहे थे. तो ये आइडिया मुझे आई कि जैसे पुराने ज़माने में बोलते थे ना कि बच्चा पैदा कर लो, तो फिर साथ में माँ-बाप को रहना पड़ेगा. ओके, ये पुराने ज़माने में होता था. तो ये घर भी एक बच्चे की तरह है. दैट लॉक इन हो जाता है. अब दोनों को EMI चुकानी है. दोनों मतलब तो एक फोर्स्ड टुगेदरनेस हो जाता है. ऑफ Combined कोर्स force. other things have to be there also. You can't, this cannot be the only glue that binds. Okay, लेकिन ये भी ग्लू इम्पोर्टेंट है. तो हर चीज का दूसरा पहलू भी होता है. और कुछ बाइंडिंग होना कभी कभी कोई केसेस में बाइंडिंग होना भी अच्छी बात है. तो आई थिंक ये जो डिसीजन है ना कि कब लेना चाहिए, बेसिकली इट शुड गो विथ अफोर्डेबिलिटी. ओके, कि मैं रहने के लिए इन्वेस्टमेंट के तरीके से मत सोचिए. लोग क्या सोचते हैं, अभी जितना कर सकते हो ले लो, ओके, ताकि बाद में जब एक्चुअल लेना है तो इसको बेच के वो ले लेंगे. उसमें अनस्टेटेड अजम्पशन इज दैट कि जो रियल एस्टेट की भाव है वो ज्यादा फास्ट इंक्रीज होते हैं बनिस्बत की और कोई इन्वेस्टमेंट के. ओके, नाउ दैट वी नो, वी हैव डेटा. आप डेटा निकाल के देख लीजिए. NHB आजकल रेसिडेक्स दे रहा है, पिछले 12, 13, 14 सालों से तो दे रहा है. ओके, रियल एस्टेट इन एवरी सिंगल मार्केट, बॉम्बे, दिल्ली, बैंगलोर, हैदराबाद, माइक्रो मार्केट की बात नहीं कर रहा, स्पेसिफिक ओवरऑल बेसिस पे आप देखें, सिंगल डिजिट रिटर्न्स ओवर लॉन्ग पीरियड्स मिले. अगेन 1 या 2 साल की बात नहीं कर रहे, बट अगर 10 साल का रोलिंग रिटर्न्स देखें तो सिंगल डिजिट रिटर्न्स हैं. कई केसेस में बहुत लो हैं, 2-2%, 3-3% ही रिटर्न्स हैं. तो ये जो एक अनस्टेटेड अजम्पशन होता है कि रियल एस्टेट का भाव दूसरे इन्वेस्टमेंट से ज्यादा बढ़ेगा, ये बिल्कुल भी सही नहीं है. और जैसे मैंने कहा, कॉन्शियसली अगर आप लो तो ठीक है, वरना अनकॉन्शियसली डिसीजन मत. दैट आई थिंक. लेट्स से किसी की सैलरी है 20 लाख रुपए पर एनम एंड 30 साल उसकी उम्र है, क्या वो 1 करोड़ का घर ले सकता है या लेना चाहिए उसने ये टाइम पे? करीबन इफ यू टेक द एग्जांपल ऑफ 40% बीइंग अ कट ऑफ, यू विल फाइंड इंटरेस्ट रेट पे ऊपर नीचे होता है, टेन्योर से ऊपर नीचे होता है. करीबन 4 टाइम योर एनुअल सैलरी फॉर समबडी सो यंग. 30 की उम्र 30, बताई हाँ. आपने. फॉर समबडी सो यंग, 4 टाइम्स योर salary. That much should be the loan. I'm Okay. giving a rule of the thumb, and Yeah. rule of the thumb should be tested with actual numbers. But 80 लाख लोन हो गया तो 1 करोड़ का घर हो गया. करेक्ट. 20 तो वो 20 लाख रुपए होने भी चाहिए.
तो डाउन पेमेंट होना चाहिए। तो ऑर्डर क्या है, मेरे को घर की जरूरत होनी चाहिए। ओके, सो आई शुड हैव द नीड। अफोर्डेबिलिटी टेस्ट करने के लिए मेरे पास 20 लाख रुपए होने चाहिए, और उतनी सैलरी है तो वो 80 लाख का घर होना चाहिए, तो देन इट इज अफोर्डेबल। Hmm. बट सब अफोर्डेबल के पहले क्या मुझे जरूरत है घर की, दैट आई थिंक शुड बी टेस्ट। And what proportion of net worth should be in buying a house? So, for example, let's say मुझे 1 करोड़ का घर खरीदना है, तो ideally मेरी net worth कितनी होनी चाहिए to, let's say, buy a 1 CR का house? So I will answer this again. Sorry, I don't think it should be a percentage of net worth. Hmm. We, for example, don't even count the house that you live in as an asset. It is not an asset. Bro, net worth में include तो होगा ना? हम तो नहीं करते, अच्छा। हम तो नहीं include करते। होगा, you are हाँ। right, as a part of the net worth, but when we are looking at investable assets, net worth से वो I mean that house, residential house, suppose it is 2 crore, that we reduce, Okay. because that at any point in time we will not be able to unlock. Okay. See, इंडिया में अभी तक we don't have like US. US में roughly I think 30% of the people change their houses every year. 20 some odd percent. Every year? Every year. My I mean, God. that mobile a country it is. Okay, it is that mobile a country. हमारे यहाँ इतनी अब बेटर, पहले से ज़्यादा हो गई मोबिलिटी, लेकिन अभी भी कम है। ओके, सो अगर वो टाइप की मोबिलिटी अगर हमारी नहीं है, राइट, तो देन I mean, why do this? I don't understand the need for doing But this. I think your viewers may want to know. So the way I think about it is that if you buy a house and it is a large portion of your net worth or a large portion of your amount getting invested, impact is on liquidity. That I can't sell one balcony, one bathroom when I need the money. I have to sell the whole thing or I can't. So the other way to look at it is don't put too much into property as an asset class. So if you have done multiple, then take all of them into account. So if it is in our calculation and our mind, if it is crossing 50%, then it's a big danger signal. But if you have less than 10% also, then we say, please buy the house. Then, you know, you have zero or you have very little, then put some money in that category, because of course we all have our biases that what asset will do well, but they are all based on assumption, and therefore assumptions can go wrong. So financial planning talks about asset allocation. So we can't have anything zero. We can't have anything 100. So it is. So I'll talk about something practical. So whatever they are saying is all absolutely right. But हकीकत में क्या होता है, when somebody buys a house, उनके पास जितना भी है, थोड़ा सा लिक्विडिटी वो रख लेते हैं, उनके पास जितना भी है पूरा वो डाल देते हैं, एंड am I able to service the EMI, वो सिर्फ वो देखते हैं और जितना भी है वो डाल देते हैं. So that is what is really happening. So now the net worth will be something like 95%, the house. So that is how it is in reality. So whether that is the most ideal thing, मेरे हिसाब से नहीं है, but वही तो होता है. In reality, that is exactly what happens. So you will have to manage that properly. You will have to have, the only thing which I will say in this situation is that you have to have enough liquidity if there is an event, if there is a contingency, if there is a surprising event which you need to take care. उसके लिए कम से कम आपके पास कुछ तो इलाज होना चाहिए. I mean, some level of liquidity होना ही चाहिए. But to start with, lot of people when they are buying a house, either if they are in the late 30s also, there are people who want to buy a lavish house in a good area. So उसके हिसाब से जितना भी पैसा है उनके पास वो डाल देते हैं. यंग एज में तो इनके पास इतना पैसा भी नहीं है, so जितना है वो डाल देते हैं. So in all situations, what we have generally seen is most cases, the house which people buy, to start with, at least it is some 60, 70, 80% of their net worth. Okay. And over a period of time, because they are earning, because their income goes up, over a period of time, it becomes better. Nothing to really worry about. The only thing to focus on is liquidity to start with. So, And I think one other thing is very important. I'm glad Suresh raised this. Is that protect risk.
So if you are the earning member and contributing because of your income for that EMI, do you have enough life insurance? It's a very, very important factor. So in case of your own death, then is the family ousted from the place because now they have to pay for that home. So you should have enough life insurance. So even if you don't have liquidity or you have liquidity and as he said, put 95%, life insurance becomes very, very critical. So the other thing I would like to say is that it has to be part of a plan rather than have a thumb rule that says इतना परसेंटेज ठीक है. आपके प्लान को कैसे अफेक्ट कर रहा है? क्योंकि घर खरीदना सिर्फ एक उद्देश्य नहीं हो सकता. आपकी लाइफ में और भी बहुत से उद्देश्य हैं. तो वो उद्देश्य का पे इम्पैक्ट क्या होगा इतना घर खरीदने से? उसको इसीलिए फाइनेंशियल प्लानिंग बहुत इम्पोर्टेंट है. तो प्लानिंग करके अगर आप खरीदेंगे तो आप पता कर पाएंगे. रूल ऑफ द थम्स आर वेरी डेंजरस एक्चुअली. ओके, बिकॉज रूल ऑफ द थम्स हाइड सो मेनी स्पेसिफिक थिंग्स दैट आर एप्लीकेबल टू अ सर्टन पर्सन. जैसे मेरा एग्जाम्पल है, व्हाट हाउस कुड आई अफोर्ड was decided by my father, not by me. Okay, and sure, did it make sense? It made sense for me, right? सो वो एक स्पेसिफिक एस्पेक्ट था. अब आजकल बहुत ऐसे होता है कि पेरेंट्स बोलते हैं कि हम थोड़ा दे देंगे. ओके, एंड देन द हस्बैंड वाइफ आर वर्किंग, दे विल पुल इट टुगेदर. ओके, एंड देन दे विल बाय. सो व्हाट इम्पैक्ट डज इट हैव ऑन द फ्यूचर? आई थिंक दैट नीड्स टू बी सीन. एक चीज बहुत जो लोग नहीं टेक इनटू अकाउंट कर रहे हैं, खास करके अगर young couple just after marriage they buy. Okay, one big risk today is separation and divorces. Okay, and we are seeing that in practice, right? And that is the biggest reason for defaults on home loan, or at least it used to be when I used to do that business. I don't know now number one reason what is there for defaults. Okay, earlier it was separation and critical illnesses was number two reason. तो अगर सेपरेशन होता है तो जो मैंने एडवांटेज बताया था कि भाई लॉक इन है, ओके, वो बच्चा होने से शादी साथ में रहती है, लेकिन अगर वो उनकी बनती नहीं तो बच्चा होने से लाइफ हेल हो जाती. बच्चे की भी, इस केस में ऑफ कोर्स हाउस डजंट हैव एनी फीलिंग्स, बट उनके दोनों की प्रॉब्लम बहुत बढ़ जाती है. द फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स मल्टीप्लाई if they decide to separate. And I think people should give time for their marriage to settle before they decide to take on a major, इतना बड़ा लाइबिलिटी साथ में लेना. वो जब तक शादी के 2-3 साल ना हो जाए और तब तक ये नहीं क्लियर हो जाए कि ये शादी रहने वाली है. एंड अनफॉर्चुनेट है हमारी सोसाइटी में अब ये. अनफॉर्चुनेट क्यों है? दिस इज अ फैक्ट ऑफ लाइफ, वेदर अनफॉर्चुनेट और नॉट वी डोंट नो, that this is a fact of life that more of such instances are happening, and this has to be taken into account in planning. इसको हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते. लोकेश सर, आपने बताया कि लाइफ इंश्योरेंस जो है वो क्रिटिकल होगा ये केस में, एंड दैट इज़ समथिंग व्हिच पीपल शुड टेक केयर ऑफ. तो अगर मैं इंश्योरेंस पे थोड़ा टाइम स्पेंड करूँ एंड मैं मेरी भी बात करूँ, तो फ्रैंकली मैंने अभी तक टर्म इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस नहीं लिया है और मैंने हेल्थ इंश्योरेंस लिया हुआ है. सो आई वांट टू आस्क, इफ देयर इज समवन हु इज़ यंग लाइक 25-26 ईयर ओल्ड हु इज़ वाचिंग दिस, कैन यू एक्सप्लेन अस कि क्या बेनिफिट है कि हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस या टर्म इंश्योरेंस कौन-सा लेना चाहिए? कैसे डिसाइड करना है कितना कवर लेना चाहिए, एंड हाउ टू डिसाइड व्हिच इज़ द बेस्ट पॉलिसी फॉर मी? We have 2-3 hours, right? I definitely have. I don't know about you. Audience we are talking Yeah. about. But yeah, I think health insurance is the first thing that you should take, and I think it's a good. The younger you are, the larger amount you need to take because it is not inflation protected. Your claim will come later, 20-30 years later. For people like me, it may not come 20-30 years later. So because it is not inflation protected, you need a larger sum than I do, frankly. तो 21 साल का अगर लड़का है, मुंबई में रह रहा है, क्या कवर लेना चाहिए हेल्थ इंश्योरेंस में? तो मेरे हिसाब से ये सोचना है कि what amount of illness you can imagine today you might have. And if that amount, let's say, is 10 lakh, 15 lakh, whatever that amount is,
that you want to cover. You decide that amount. Then take every sort of 6 years, it's doubling that amount. And then go till age 80 and see how many times that is. So it will be a very large number, right? Then you come to affordability, because this single insurance for yourself for that amount, let us say it is 5 crores. It may not be available, B, it will be very costly. So you say, okay, I can afford to pay X amount of premium. Then you break down that health insurance into, this is on my life individually. If you are part of a family, then floater, and then a top up. In combination, you will find something which is reasonable. It may not cover 100% of what you need. Therefore, you know, okay, I needed, I'm just throwing a number, 5 crores of health insurance to cover myself and family till I am 80. So I am taking this cover with individual cover of say 50 lakh or 25 lakh. I'm taking a floater of 25 lakh. I'm taking top up another amount. So I'm covered to say 1 crore rupees or 1.5 crore rupees. Balance, now I have to start building corpus which I'm keeping aside for medical emergency. That's one part. On life insurance, I think we have all grown up to calculating life insurance as a replacement of liability. So the simple thing is, if I am the earning member of the family, I am contributing 1 lakh rupees a month to my family. And therefore, if I die, I need an ATM to replace me to give 1 lakh rupees per month to my family. Forget inflation, all that, yes, is needed. But if I had to do that, if I put 2 crores in an FD, I'll get 6%. Again, assuming whether 6% will stay or not stay taxable, I'm not counting that. I will get 12 lakh rupees per year. So then I need 2 crores cover. I can then minus what I have, etc., or I don't minus because inflation. But I think people forget that your family's aspirations are met over your lifetime. They keep growing. So if you are earning a certain amount of money today, let's say you took that example of that person earning 20 lakh rupees. If you are earning 20 lakh, what percentage increase are you assuming every year on that income? Let's say 5%. Let's say you want to work till the age of, or you're capable to work till 55, 60, 65, whatever. So 35 years. What is that sum total of money that you will earn in that period? Discount it to today's value. If you got a check of that amount, you should stop working. That is your amount of life insurance in it. Because all families' future goals will also get covered. But the answer will be somewhere in between in my mind, because you will not start with, oh, I need 10 crore insurance, because that's all the future goals. It may be lesser. तो इसमें हेल्थ इंश्योरेंस में आपने बताया कि जैसे अगर 1 CR का कवर या डिपेंडिंग ऑन कि कहाँ पे हो एंड ऑल उस हिसाब से लो लाइक 15 लाख से भी शुरू कर सकते हैं 25 लाख हो सकता है तो ये केस में अज्यूम करते हैं कि 25 लाख का कवर है तो क्या प्रीमियम होगा 25 लाख की आइडियल पॉलिसी में मुंबई जैसी शहर में और सेकेंड क्वेश्चन इज कि व्हाट प्रपोर्शन ऑफ माई सैलरी शुड गो इनटू प्रीमियम तो अगर मैं लेट्स से 1 लाख रुपए कमा रहा हूँ तो उसमें से कितना मैंने प्रीमियम में स्पेंड करना चाहिए Unlimited. I I was going to so say that. इंश्योरेंस इंडस्ट्री ने एक कैंपेन शुरू किया बट लाइक एवरीथिंग एल्स विद द इंश्योरेंस इंडस्ट्री वो भूल जाते हैं कि वो इंश्योरेंस के लिए है इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं हाँ। तो उन्होंने एक कैंपेन किया उसका स्लोगन मुझे बहुत अच्छा लगा कि सबसे पहले इंश्योरेंस वो सही है ओके इंश्योरेंस कम्स बिफोर इन्वेस्टमेंट प्रोटेक्शन कम्स बिफोर इन्वेस्टमेंट उसमें कोई डाउट नहीं है the problem comes when people mix protection and investment okay so let us assume we are talking purely of protection so he's already spoken about life and health insurance अब ये हेल्थ इंश्योरेंस ना एक बड़ा ही कैच ऑल टर्म है तो हेल्थ इंश्योरेंस में दो टाइप की हेल्थ इंश्योरेंस होती है एक तो ये कि अगर आप हॉस्पिटल में भर्ती हो गए तो जो खर्चे हैं वो खर्चों का रीइंबर्समेंट होगा जितना खर्चा होगा उतना ही मिल सकता है उसमें आप फायदा नहीं कर सकते तो वो बहुत जरूरी है वो सबके लिए जरूरी है अर्निंग मेंबर्स हो नॉन अर्निंग मेंबर हो जिसकी भी जिम्मेदारी आप पर है तो लोग याद रहता है लोगों को कि भाई पेरेंट्स तो मेरे पे डिपेंडेंट नहीं है लेकिन अगर पेरेंट्स हॉस्पिटल में जाएंगे खर्चा होगा
तो क्या उनके पास है इंश्योरेंस? अगर नहीं है, तो आप क्या आप नहीं देंगे उनका खर्चा? अगर आपको देना है, तो प्लीज़ टेक इंश्योरेंस रादर देन डूइंग समथिंग एल्स। अगर अवेलेबल है, तो उनके लिए भी हेल्थ इंश्योरेंस लीजिए। तो डिपेंडेंट्स फॉर द पर्पस ऑफ मेडिकल इंश्योरेंस, मेडिकल कॉस्ट्स रिइंबर्समेंट इंश्योरेंस, मेडिक्लेम बोलते हैं जिसको आम भाषा में, ओके? वो सिर्फ अपने लिए नहीं ज़रूरी है, जिसके भी हॉस्पिटल के खर्चे आप पर निर्भर हैं, वो सबके लिए लेना चाहिए, इंक्लूडिंग योर सपोर्ट स्टाफ। अगर आपका कोई ड्राइवर है, आप याद सोचिए कि वो ड्राइवर आपके साथ 20 साल है, उसके भी परिवार में अगर कोई हॉस्पिटल जाएगा, आप ही के पास आएगा वो पैसे लेने और तब देंगे आप। तो उससे अच्छा आप उसके लिए इंश्योरेंस ही ले लीजिए, मेडिकल कॉस्ट रिइंबर्समेंट इंश्योरेंस। तो वो एक बात हुआ। एक चीज़ जो मेरे ख्याल से प्रचलित ही नहीं है, ओके, लोग सोचते ही नहीं है या सोचते हैं तो बड़ा ही एक टिक आइटम की तरह सोचते हैं, व्हिच इज़ क्रिटिकल इलनेस। अगर आपको लकवा मार गया, ओके, आपके ऑर्गन्स फेल हो गए, नाउ यू हियर ऑफ पीपल्स किडनीज फेलिंग व्हेन दे आर 30, 35, ओके, मतलब दीज थिंग्स हैव बिकम अनफॉर्चुनेटली बहुत ज्यादा फैल चुका है ये। तो ऐसी टाइप की इलनेस होती है, तो हॉस्पिटल का खर्चा जो है उसमें, ओके, वो आपको ये मेडिकल कॉस्ट रिइंबर्समेंट मेडिक्लेम पॉलिसी से मिल जाएगा। बट अगर आपके ऑर्गन फेल हो गए तो आप जहाँ नौकरी कर रहे थे, अगर आप कोई धंधा कर रहे थे, वो धंधा भी ठप हो जाएगा, नौकरी शायद छूट जाएगी, तो आपको इनकम रिप्लेस करना पड़ेगा। क्रिटिकल इलनेस इज ओरिजिनली मेंट टू बी इनकम रिप्लेसमेंट, और इनकम रिप्लेसमेंट है तो उसका रिक्वायरमेंट लाइफ इंश्योरेंस से भी ज़्यादा है। बिकॉज़ लाइफ इंश्योरेंस में तो आप नहीं रहेंगे, तो खर्चे थोड़े कम हो जाएँगे। क्रिटिकल इलनेस में आप भी रहेंगे, आपके खर्चे भी रहेंगे और इनफैक्ट खर्चे बढ़ जाएँगे। तो रिक्वायरमेंट ऑफ क्रिटिकल इलनेस इज़ वेरी हाई, मिलता नहीं है इंडिया में। 1 करोड़ से ज़्यादा आप कोशिश करके देख लीजिए, जान निकल जाएगी उसको मिलने में, बहुत महँगा है। तो लोग क्या करते हैं, किसी ने बोल दिया कि क्रिटिकल इलनेस इम्पोर्टेंट है, कहीं पॉडकास्ट पे सुन लिया क्रिटिकल, मैंने बोल दिया, अब किसी ने सुन लिया क्रिटिकल इलनेस इम्पोर्टेंट है, वो मेडिकल रिइंबर्समेंट में एक क्रिटिकल इलनेस राइडर ले लेगा। क्रिटिकल इलनेस राइडर क्या होगा? 5 लाख रुपए का, 1 लाख रुपए का। तो वो फॉर्म है, इज़ जस्ट टिकिंग अ आइटम, इट्स नॉट सर्विंग एनी पर्पस। तो क्रिटिकल इलनेस बहुत इम्पोर्टेंट है। इवन जिसके कोई डिपेंडेंट्स नहीं है, उसको भी क्रिटिकल इलनेस लेना है ना, क्योंकि वो खुद पे तो डिपेंडेंट है, और अगर उसको क्रिटिकल इलनेस हो जाएगी, ओके, तो उसकी इनकम बंद हो जाएगी, तो उसको दूसरे पे आश्रित होना पड़ेगा। तो क्रिटिकल इलनेस इज़ अ नीड फॉर एवरी अर्निंग मेंबर ऑफ द सोसाइटी। सिमिलरली एक्सीडेंटल डिसेबिलिटी पॉलिसी, नॉट एक्सीडेंटल डेथ। एक्सीडेंटल डेथ टर्म कवर में आ गया, लेकिन आप गाड़ी चला रहे हैं, एक्सीडेंट हो गया, दोनों आँखें चली गई, तो जो भी नौकरी कर रहे हैं वो शायद चली जाएगी, जो भी धंधा कर रहे हैं बंद हो जाएगा। अगेन इनकम रिप्लेसमेंट एंड एक्सीडेंटल डिसेबिलिटी इज़ अवेलेबल वेरी चीप, ओके? वो नहीं लेना इज़ लिटरली इर्रेस्पॉन्सिबिलिटी, इज़ व्हाट आई फील। क्रिटिकल इलनेस तो मिलने में भी तकलीफ होती है, महँगी भी। तो सैलरी का कितना परसेंटेज होना चाहिए प्रीमियम? नहीं देखना चाहिए सैलरी से, जैसे मैंने कहा, इट इज़ लाइक, ये आप पूछ रहे हैं कि भई खाने का कितना हिस्सा होना चाहिए, खाने-पीने का, ओके? कितना हिस्सा होना चाहिए आपकी सैलरी का, ओके? कितना हिस्सा होना चाहिए, जितने खाने की आपकी ज़रूरत है, उतना पैसा आपको खर्चा करना पड़ेगा, हुँ। ओके? आई बट थिंक अगर दिस इज़ सैलरी समथिंग 1 लाख सिमिलर। रुपए की है मेरी पर मंथ, नहीं आई तो कांट स्पेंड 60,000 इन माय प्रीमियम। no, so critical illness and term insurance automatically becomes linked to salary, okay, or accidental disability. Health insurance is the only place where you need to do some kind of budgeting as a percentage. I'll try to answer this in some other way. सो इंश्योरेंस जो चीज़ होता है, सो वो एक सिक्योरिटी नेट प्रोवाइड करता है, वेदर इट इज़ लाइफ इंश्योरेंस, वेदर इट इज़ मेडिकल इंश्योरेंस और क्रिटिकल इलनेस, इट्स अ सिक्योरिटी नेट। सो आपका सिक्योरिटी नेट कितना मजबूत होना चाहिए वो आपके ऊपर डिपेंडेंट है, ओके? And in the concept of insurance is how much risk are you willing to keep with you and how much are you willing to farm out to an insurance company
जिसके लिए आप प्रीमियम भरते हो. Okay, so that is something that you will have to decide. So to start with, at the beginning of the career, आपके लिए गोल्स भी होंगे, एक्सपेंसेस भी होंगे और दूसरा भी लिक्विडिटी एंड अदर इवेंट्स होंगे. सो आपके लिए इतना ही होगा. सो आपको प्रायोरिटाइज करना होगा कि क्या-क्या हमको लेना है. बट वेरी वेरी फॉर्च्यूनेटली जैसे इन्होंने बताया है, medical insurance is the first most important thing, not even life insurance, medical insurance, because life insurance, that death will happen once in a lifetime. Medical insurance for multiple people can happen multiple times and it can bankrupt you. Okay, so medical insurance लेना ज़रूरी है. So medical insurance जो I mean ये लोग ने बोला है वो सही है. I mean it has to be a very decent big number. But if you are going to reasonably protect, I'm talking about probability. So what is the probability that you will be spending more than 15 lakhs or 20 lakhs in a year? Is there a probability that your hospital bill can go beyond 15 lakhs or 20 lakhs? The answer is yes, but the probability may be 2% or 1%. Especially if your age is only 30, the probability is low. So I would go with probability, and I would say that if you have a basic life medical insurance of 5 lakhs and a super top up of 15 lakhs, you are covered till 20 lakhs, and that will come at a very low premium. So वो तो हर किसी को लेना ही चाहिए. कितना 12-15 हज़ार का होगा प्रीमियम? Yeah, roughly in that ballpark, maybe less, because super top up is actually very cheap. So basic insurance maybe 7-8 thousand, and that may be another 2-3 thousand. That's all. Maybe 10,000 plus. So if it can give you a protection up to say 15-20 lakhs to start with, this is a great level of protection, because early ages में, yes, of course anything can happen to anybody at any point. Okay, वो तो है. But again, what is the probability? The probability of a young person getting into hospitalization, while it is there, it is not that very high as compared to a person who is 55, for example. So हर किसी चीज़ में वो प्रोबेबिलिटी देखना है. सो क्रिटिकल इलनेस इन्होंने जो बोला है वो सही है. आई मीन क्रिटिकल इलनेस इज़ रिक्वायर्ड, बट देयर इज़ ओनली वन थिंग दैट वी विल हैव टू कीप इन माइंड. क्रिटिकल इलनेस ये लोग जो डिफाइन करते हैं, इंश्योरेंस कंपनी जो डिफाइन करते हैं, वो 10, 12, 15, 20, 30 ऐसा एक्चुअल डिफाइन करते हैं. ओके, ये क्रिटिकल इलनेस होता है, ये ही कवर होता है करके. एंड जब वो देते हैं, फॉर एग्जांपल कैंसर, इसका सीवियरिटी लेवल 4 है तो देंगे, नहीं तो नहीं देंगे. सो मीनिंग इट्स अ यूजफुल प्रोडक्ट वेर एवर यू आर एबल टू क्लेम. बट लॉट ऑफ टाइम्स दैट क्रिटिकल इलनेस जो है वो डिफाइन ही नहीं होगा, वो पॉलिसी में डिफाइन ही नहीं होगा. So you also have to take a policy which is reasonably comprehensive. And if you are not able to take a policy which is reasonably comprehensive, there is not much point in taking a critical illness in the first place, because critical illness policy is a comparatively costly policy, वेरी एक्सपेंसिव. expensive policy. So वो आपको सोच समझ के लेना है. मैं क्या बोलूँगा, मेडिकल इंश्योरेंस आपको एकदम प्रायोरिटी देना है. उसके बाद टर्म इंश्योरेंस इज एब्सोल्युटली रिक्वायर्ड. टर्म इंश्योरेंस एक्सट्रीमली चीप फॉर अ 30-year-old. मे बी 8-9 thousand में 1 crore मिल जाएगा उनको. सो एक्चुअली देयर इज नो एक्सक्यूज फॉर अ पर्सन नॉट टू हैव दिस थिंग. ऑफ कोर्स मेडिकल फाइनेंशियल अंडरराइटिंग करके एक चीज़ होता है. सो आपका एलिजिबिलिटी है क्या नहीं है, वो इंश्योरेंस कंपनी देखेंगे. आप 10 crore मांगेंगे तो नहीं देंगे. सो एलिजिबिलिटी फाइनेंशियल अंडरराइटिंग में एलिजिबिलिटी देख के आपको देंगे. सो जितना एलिजिबिलिटी है, नॉर्मली अबाउट 15-17 टाइम्स ऑफ योर एनुअल सैलरी वो आपका एलिजिबिलिटी होता है. सो उतना तक आपको लेना चाहिए. ये आई मीन इट विल कम एट अ वेरी लो प्रीमियम. सो आई एम आंसरिंग द क्वेश्चन व्हिच यू आर आस्किंग. This will not be a very major component of your overall income. Maybe you may spend all put together, maybe 50, 60,000, 70,000 is what you will be spending. And that is absolutely essential. I mean, without that security net, you cannot attempt to function. 56,000 every year. हाँ, 50, 60, 70,000 जो मैंने बताया अभी, like for example, if you take a life insurance of 1 crore, if you take medical insurance, which will cost you maybe 12, 15 thousand, and even if you have a family, you are taking a family floater, say 30 lakhs या 40 lakhs या जो भी है, and there are policies where you take a 15 lakh policy, it will automatically give you another 15 lakh cover. So वो सब है आजकल. So while it is costly, some of these policies can be costly. You have to look at what amount of risk you want to keep, what amount of risk you want to farm out. That is the whole principle of insurance. Critical So illness कितना महंगा होता है?
क्रिटिकल इलनेस काफ़ी महँगा होता है और क्रिटिकल इलनेस मतलब अभी फिगर्स मेरे दिमाग में नहीं है बट 1.5 to 2 times at least of the term No, 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 premium it's and more, amount it's more, it's three, more, 4 it's 4, 5 times. It's very expensive for the same amount. for the same amount. तो उसका एक तरीका है जो शायद इतना यूज्ड नहीं है, वो ये है कि फॉर सम स्ट्रेंज रीज़न जब आप टर्म इंश्योरेंस के साथ क्रिटिकल इलनेस राइडर लेते हैं, उसको एक्सीलरेटेड सम इंश्योर्ड बोलते हैं कि अगर क्रिटिकल इलनेस हो गया और अगर आप 15 दिन या 30 दिन जिंदा रहे, ओके 30 दिन होता है, 30 30 दिन। दिन जिंदा रहे तो वो पेमेंट हो जाएगा और उतना आपका टर्म इंश्योरेंस कम हो जाएगा। तो इट इज टर्म इंश्योरेंस पेड एट द टाइम ऑफ गेटिंग क्रिटिकल इलनेस इन पेड इन एडवांस। वो प्रीमियम भी कम होता है और लाइफ इंश्योरेंस कंपनी से लेने में आपको लेवल मिल जाता है। अगर 20 साल के लिए ले रहे हैं, आपका प्रीमियम फिक्स हो गया, 20 साल वो का वो रहेगा। यही चीज़ आप नॉन लाइफ कंपनी से लेंगे, तो प्रीमियम ज़्यादा है। पहली बात तो वो 1 करोड़ तो देते ही नहीं है। चलो किसी ने दे भी दिया, तो उसका प्रीमियम फिक्स्ड नहीं है। आज ये प्रीमियम है, ऐज के हिसाब से बढ़ते रहेगा और आईआरडीए के परमिशन के बाद वो और भी बढ़ा सकते हैं। तो मतलब अगर क्रिटिकल इलनेस लेना ही है आपको, तो क्रिटिकल आप टर्म इंश्योरेंस के साथ लीजिए एंड वी हैव प्रूफ दैट टर्म इंश्योरेंस प्लस क्रिटिकल इलनेस, ओके, इज चीपर देन प्योर स्टैंड अलोन, सॉरी, pure simple standalone critical illness. So that is the amazing fact about insurance companies which I have never been able to understand. I think the one thing, for this audience, important because you are asking questions saying, okay, this audience is typically do it yourself. So can you give me a formula? I think financial planning doesn't need or cannot work on formulas. It needs a personal sort of advice from financial planner. So this is one thing that younger people should figure out. Yes, they can spend time evaluating, etc., and then getting advice which is suitable to them rather than listening to this podcast and saying, अच्छा ये बता दिया ये 4 लोग बैठ के wise people said this, so I will follow this. Because when you are listening to this, watching this, it feels like, अच्छा, I'm talking to you, but I may not. I'm talking to a generic audience, and you may not be the person that this applies to. Let's also spend some time on mutual funds, which is the last segment. So mutual funds में अभी सबसे कॉमन क्वेश्चन जो ऑडियंस का होता है, एसआईपी वर्सेस लमसम। अभी के मार्केट्स के हिसाब से आपके हिसाब से क्या करना चाहिए एंड हाउ टू स्टार्ट द म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग जर्नी? Boss, SIP is simple. SIP is future income. Then you are doing SIP. If you have money available today, then there is no SIP. Then it's lump sum. You may decide to do STP. क्या होता है एसटीपी? Systematic transfer plan. And I put it there, but I want to not enter altogether. I want to stagger and invest. That's a short, simple answer to this question. But I don't know. Longer. या सो एसआईपी और लमसम ये बहुत बार पूछा जाता है, बट एक्चुअली इट इज़ अ फैक्टर ऑफ व्हेन द मनी इज कमिंग इन व्हाट फॉर्म। नॉर्मली पीपल का सैलरी आता है एंड ऑफ द मंथ, सो वॉट एवर सरप्लस यू हैव, it is the most ideal way of deploying that surplus is through systematic investment plan, SIP. बट अगर आपके पास एक रकम होता है 20 lakhs 10 lakhs वगैरह, वो तो इन्वेस्ट करना ही चाहिए। स्पेशली आपका लॉन्ग टर्म ओरिएंटेशन है, आपको इन्वेस्ट करना ही चाहिए। सो इट इज़ नॉट अ क्वेश्चन ऑफ SIP वर्सेस लमसम, इट इज़ अ क्वेश्चन ऑफ व्हेन द मनी इज अवेलेबल टू यू। सो दैट इज व्हाट इज गोइंग टू डिसाइड वेदर इट इज लमसम और द मंथली इन्वेस्टमेंट। So basically, I mean, again, it boils down to planning and asset allocation. No, कि मतलब जो भी पैसा है, उसको कहाँ जाना है? Okay, that is more important. SIP और लमसम तो तरीका है, बट इन्वेस्ट किस में करना है उस पे डिपेंड करता है। अगर आपको फिक्स डिपॉजिट में डालना है, लिक्विड फंड में डालना है, तो क्या ही फर्क पड़ता है, आप चाहे सिप से करिए चाहे लमसम से करिए, कुछ भी नहीं फर्क पड़ता। लेकिन अगर आप वॉलेटाइल असेट्स में डाल रहे हैं, आप गोल्ड में डाल रहे हैं, डोमेस्टिक इक्विटी में डाल रहे हैं, इंटरनेशनल इक्विटी में डाल रहे हैं, तो उसको
सिस्टमैटिकली करना चाहिए और देन कम्स कि वो पैसा आ कैसे रहा है। अगर पैसा सिस्टमैटिकली आ रहा है, सैलरी से आ रहा है, तो वो सिस्टमैटिकली इन्वेस्ट हो जाएगा। पैसा अगर लमसम है, तो उसको सिस्टमैटिक में कन्वर्ट करिए, उसको लिक्विड फंड में डालिए और वहाँ से आप उसको सिस्टमैटिकली ट्रांसफ़र करिए वोलेटाइल असेट्स में, गोल्ड में, इक्विटी में, इंटरनेशनल इक्विटी में। तो एसेट एलोकेशन आइडियली क्या होना चाहिए एक यंग 25 ईयर ओल्ड का? परसेंटेज वाइज अगर एसेट एलोकेशन की बात करूँ तो व्हाट शुड बी एन आइडियल एसेट एलोकेशन? So there is no such thing as an ideal asset allocation. If there was, why would anybody else follow any other asset allocation? So asset allocation is it is like saying कि भाई शर्ट की साइज क्या होनी चाहिए? अब शर्ट की साइज आपकी कद के हिसाब से, आपकी काठी के हिसाब से बनेगी, करेक्ट? तो सिमिलरली एसेट एलोकेशन आपके उद्देश्य कब हैं? आपके गोल्स कब आ रहे हैं? आपका रिस्क टेकिंग एबिलिटी क्या है? ओके? आपके रिसोर्सेज कितने हैं? इन सब के बेसिस पे एसेट एलोकेशन सो इट इज़ हार्डकोर कस्टमाइज़ेशन अगर आप इसको रूल ऑफ द थंब बनाएँगे, तो इसके इतने ज़्यादा एक्सेप्शंस हैं, ओके? कि वो रूल ऑफ द थंब का कोई बिल्कुल भी मेरे हिसाब से बिल्कुल भी मतलब नहीं है। दैट इज़ एट लीस्ट माय फीलिंग। आई हैव नो आइडिया व्हाट दे Yeah, my feeling is that rule of thumb works if everyone's thumb is the same size. And it's different, right? So there is no rule of thumb. I think asset allocation, as he rightly said, is so if you think about you as an individual, आपके पास पैसे हैं, so first thing, as we discussed earlier, make sure you have put money for protection of risk. So your health insurance, life insurance you have bought. Now you have some money left. Now what is your liquidity requirement? Agar next 2 months, 3 months, you are spending 30,000 rupees a month. So 1 lakh rupees should be kept aside without risk. So whether you put liquid fund, arbitrage fund, whichever other fund, which is not or fixed deposit, where it doesn't go up and down. Yeah, you will want to see post-tax return kya hai comparison. That's so you remove that. Now you are left with other money. You can look at it two ways. One is your total risk-taking ability or appetite, and second, your goals. So it is like a cricket match where my run rate required at the start of the innings is 8 runs per over. So I have to bat in a particular way. At the end of 4 overs, I will reevaluate where have I reached. Now I have to go at 8.5 runs an over. But I have lost no wicket. I will play differently versus I have lost already 3 wickets. It's the same thing here. So your ability or your experience will determine. That is one way to look at it. The other way is you have your different objectives. आपके अलग-अलग उद्देश्य है. कहीं 2 साल के बाद आ रहे हैं, कहीं 5 साल के बाद आ रहे हैं, 10 साल के बाद आ रहे हैं. तो जो 2 साल में आ रहे हैं उसको आप ऐसे इन्वेस्ट कीजिए जहाँ पे रिस्क थोड़ा कम हो कंपेयर टू जो 10 साल के बाद आ रहे हैं. तो उसके हिसाब से एसेट एलोकेशन कौन से टाइप के प्रोडक्ट्स हो गए लो रिस्क प्रोडक्ट्स? तो लो रिस्क के पहले जो हम लोग कहते थे कि नॉन इक्विटी प्रोडक्ट, लेकिन आपको जो टैक्स का ट्रीटमेंट है वो भी देखना पड़ेगा. तो आजकल क्या होता है कि इक्विटी सेविंग्स फंड या फिर मल्टी एसेट एलोकेशन फंड ऐसे टाइप ऑफ फंड्स अवेलेबल है जहाँ पे आपको जो इक्विटी एलोकेशन है वो 15 से 30% रहेगा और बाकी का फिक्स्ड इनकम या आर्बिट्राज में रहेगा, लेकिन आपकी टैक्स ट्रीटमेंट इक्विटी के हिसाब से रहेगी. तो आपको फ़ायदा है वो सारे प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करने का जो 2 साल के बाद आपका उद्देश्य है। लेकिन 1 साल के बाद आप वो वहाँ से निकाल के और सेफ़र इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करेंगे। या फिर आर्बिट्राज में डालिए या बैंक अकाउंट में डाल दीजिए या फिक्स्ड डिपॉज़िट में डाल दीजिए या लिक्विड फंड में डाल दीजिए। बिकॉज़ आपको रिस्क लेने की एबिलिटी कम होती जाती है एज़ योर गोल्स आर अप्रोचिंग। दैट इज़ द वे आई वुड लुक एट इट। सो इट इज़ Unfortunately, it is not a standard answer. सो फॉर अ 25 ईयर ओल्ड अगेन यंग इन्वेस्टर की बात करते हैं उसके लिए लेट्स से उसके गोल्स अगले 2-3 साल में होगा लेट्स से मैरिज
10 years में होगा buying a house, something of that sort. 10 But if it is her shit, house is already bought by the father at that age. So let's assume he's not someone like her, sir. He's someone who like whose parents have not bought him a house. Yeah. तो वो केस में आइडियल एसेट एलोकेशन आप क्या बोलोगे? इक्विटी में कितना परसेंट होना चाहिए, डेट में कितना होना चाहिए? नहीं है ऐसा आंसर मेरे So, हिसाब से, लाइक बिकॉज रिसोर्सेज कितने हैं? बिकॉज वो हर रिसोर्सेज मेरी अगर बात सिर्फ कर। पहले हर 25 साल के, नो, बट ऑल 25-year-olds or all 30-year-olds are not like you. Hmm. They're different. Hmm. So it cannot be a copy paste answer in my opinion. It's very, I know the temptation is I press a button, I'll get an answer. So why we are not giving the answer, right? Yeah, I mean, So I'm it's just trying to very- understand कि कोई एक सिचुएशन मैं बताता हूँ, वो सिचुएशन के हिसाब से क्या एसेट एलोकेशन होना चाहिए? So वो can I नहीं try to possible answer है, that? but anyway. हाँ, Yeah, let me try to answer that in a Yeah. different way. हाँ, so he's not answering that. Whenever somebody says that, that is what he means. Yeah. So while I agree with what they are saying, there is a different way of looking at it. I have earlier said that आपका liquidity create होना चाहिए. I mean, you may have started your earning at 22, 23, whatever. Liquidity bucket आपका strong होना चाहिए. So the other way of looking at it is short term के लिए, short term goals के लिए और liquidity के लिए, contingency के लिए, और बाकी जो expense है उसके लिए आपका कितना पैसा जा रहा है वो आप गिन लीजिए. उसके बाद कितना कितना है. Let us assume again a income of, let us say, 1 lakh rupees. Out of that 1 lakh rupees, let us say 75,000 is going towards a lot of these things. 25,000 is available as a surplus. Now within that, what can we do? So आपका question वो है, right? So suppose it is a 25-year-old person. So उनका ऐसा माना जा सकता है कि उनका earning lifetime लंबा हो. जो आजकल वो भी नहीं बोल सकते हैं क्योंकि आजकल फायर करके बोलते हैं 35 में रिटायर होना है, 40 में रिटायर होना है. सो वी कैनॉट अस्यूम अ 55 और 60 ईयर काइंड ऑफ अ टाइम फ्रेम वेयर दे रिटायर. सो I mean, not taking that into account, let us assume that they will retire somewhere beyond 50. So which means a very long working lifetime. Okay. So broadly speaking, from the working lifetime point of view, somebody can take potentially higher risk because other things have already been factored. Okay. So again, there are two things. One is something called risk profile and one is called risk capacity. Risk profile क्या है? Inherently मुझको कितना रिस्क मैं ले सकता हूँ. दो 25-year-old हो सकता है, एक का सोचने का तरीका ये होगा कि मेरा पैसा बिल्कुल फ्लक्चुएट नहीं होना है, मुझे बैंक एफडी में ही करना है. आई एम 25 बट स्टिल आई एम थिंकिंग लाइक दैट. दूसरा जो बच्चा है उनको ये चाहिए कि पैसा ग्रो होना है. सो आई एम विलिंग टू टेक रिस्क, आई एम स्टिल यंग. So even assuming I have a loss, I will be able to take care of that. I mean, the so sense उनका that I सोच may वैसा say हो that सकता I'm है. going out 4 times a month, I will go 1 time this month because I made loss. I am okay with that. Yeah, correct. So the risk taking ability can be higher. So that depends on the risk profile. Now दूसरी बात है, so I cannot suddenly say that okay, I will see this person is 25, so I am going to put 80% in equity. So वो भी हमको देखना है. दूसरी बात है risk capacity. I mean, so for a 25-year-old, I cannot really talk too much about risk capacity, but risk capacity is high when somebody has a very long working life. So that will fit for a 25-year-old. Risk capacity can be said to be high when two people are earning instead of one person. The capacity of the family is high. Risk capacity overall can be said to be high. Suppose somebody is working, let us say, in a pensionable job, for example. So their risk capacity can be said to be high because even if they have not saved anything, उनका तो पेंशन आना ही आना है. Okay, so जिंदगी निकल जाएगा, प्रॉब्लम नहीं. Fourth one, risk capacity can be said to be high. Like if somebody is like Harsh father, so already moneyed people, so wealthy people. So and I mean, something happens, there is always a security net to take care of that. So then inherently wealthy people, the risk capacity is said to be high. So we will have to evaluate these two things, and then we will have to make a determination कि कितना दे सकते हैं. So there is a lot of things which needs to be personalized. But I think for this audience, what I would say is to start with, look at what are all the important things that you need to expense yourself or make provisions for. And after that, you look at how much you want to invest where. So I will just add one thing. I mean, ये रिस्क प्रोफाइलिंग का एक बहुत सिंपल एग्जांपल जो हम क्लाइंट्स के साथ यूज करते हैं कि
आपकी ड्राइविंग आप कौन सी स्पीड पे कंफर्टेबल हो। ओके, अगर आप कोई आदमी नॉर्मल ड्राइविंग कंडीशन में 60 की स्पीड पे कंफर्टेबल होता है, कोई 80 होता है, कोई 100 होता है, उसको आप मान लीजिए कंजर्वेटिव, मॉडरेट, अग्रेसिव। ठीक है, 60, 80, 100। तो ये हो गया उसका इनहेरेंट रिस्क टेकिंग एबिलिटी। फिर हो गया रिक्वायरमेंट, रिस्क कैपेसिटी। अब उसके पेशेंट बैठे हैं उसके उसमें, उसको हॉस्पिटल जाना है, तो 60 वाला भी 60 की स्पीड पे नहीं चलाएगा। 60 वाला भी जितनी जल्दी जितना वो चला सकता है चलाएगा। और अगर उसके पास बहुत समय है, ओके, और उसको रास्ते में थोड़ा एन्जॉय करते हुए जाना है, तो 100 वाला भी धीरे चलाएगा। नहीं, 100 वाले के पास प्रेग्नेंट वाइफ बैठी है तो 100 की स्पीड पे नहीं चलाएगा। Correct, हाँ, correct. So yeah. absolutely. So I mean it depends on the requirement. तो हमने एक मैट्रिक्स बनाया है। एनीवे एडवाइजर्स के साथ डील करने में ये फायदा है, जो सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स हैं उनके साथ डील करने में ये फायदा है कि हमको बताना पड़ता है। तो हमने मैट्रिक्स बना रखा है कि गोल टेन्योर आपका अप टू 3 इयर्स, 3 टू 7, 8 इयर्स एंड 8 इयर्स एंड अबव। वो एक हिस्सा हो गया मैट्रिक्स का। एक तरफ है रिस्क टेकिंग टाइप, कंजर्वेटिव, मॉडरेटली कंजर्वेटिव, बैलेंस्ड, मॉडरेटली अग्रेसिव, अग्रेसिव। और उसके हिसाब से हर खंड में कोई एक टाइप ऑफ प्रोडक्ट भरा हुआ है, राइट? अब गोल्स आपके इंपॉर्टेंस में आप कर दीजिए। अब रिसोर्स एलोकेट करना है, तो आपको अपने गोल्स की, सो लिक्विडिटी जैसे कहा कि वो सबसे इंपॉर्टेंट है। तो लिक्विडिटी अगेन आप कौन से खंड में है, ओके, लिक्विडिटी इज इमीडिएट, तो आप कौन से खंड में है, उसके हिसाब से प्रोडक्ट चूज कर लीजिए। तो एक ओवरऑल एसेट एलोकेशन उसके बेसिस पे वर्कआउट होगा। इसीलिए एक स्टैंडर्ड एसेट एलोकेशन करना बिल्कुल भी सही नहीं होगा। और ये जो रूल ऑफ द थंब चलते हैं ना, 100 माइनस एज, Oh, ओके, terrible. इट्स अ टेरिबल टेरिबल वे ऑफ डिसाइडिंग। Because people first and foremost live beyond 100. What am I supposed to do? Noah is talking about what he aims to do. No, I see. I don't know about you, but I see people and clients around who are more than 100 living Yeah, today. yeah. What do I do for them? And in fact, in reality मैं देखता हूँ कि कोई वर्किंग लाइफ में जितना भी अग्रेसिव हो ना हो, जो रिटायर होता है तो इमीडिएटली थोड़ा कंजर्वेटिव हो जाता है, क्योंकि वो इनकम नहीं है तो मैं क्या करूँ, मार्केट डाउन है, क्या करना चाहिए। लेकिन 5 7 10 साल रिटायरमेंट होने के बाद फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट अभी यूज टू है कि ये रिटायर्ड लाइफ है और उनके सारे गोल्स मीट हो चुके हैं, बच्चे सेटल हो चुके हैं, ग्रैंड चिल्ड्रन हो गए, पैसे दे दिए उनको, अभी आराम की जिंदगी। अभी बोलते हैं अभी तो रिस्क लेना चाहिए, क्योंकि अगर मैं नहीं खर्चा करूंगा मेरे बच्चे को मिलेगा, तो मैं खर्चा कर रहा हूँ तो मुझे रिस्क चाहिए, आप इंक्रीज करो रिस्क को। तो इन रियलिटी क्या होता है कि वो रिस्क प्रोफाइल है वो थोड़ा ग्राफ जैसा होता है कि जब भी आपके जो जिम्मेदारी ज़्यादा बढ़ती है तभी आपकी रिस्क प्रोफाइल ऑटोमेटिकली थोड़ी कम होती जाती है, क्योंकि वो इम्पोर्टेंट है, ईएमआई भरना, स्कूल स्कूल की फ़ी भरना, एजुकेशन का टेक केयर करना, वो सब। लेकिन वो अगर हो गया तो क्या, हाँ, रिलीफ, वो हो गया, अभी मैं थोड़ी और रिस्क ले सकता हूँ, तो दैट इज़ इम्पोर्टेंट, राइट? तो वो रिस्क एबिलिटी थोड़ी चेंज होती जाती है। लेकिन मेरे हिसाब से 2 चीज़ है जो हर इन्वेस्टर को याद रखना चाहिए। जैसे हम तो सजेस्ट करते हैं कि सम एलोकेशन टू गोल्ड एंड सिल्वर 5% के आसपास, जानना था मेरे को। 5% के आसपास, अगर अनसर्टेनिटी हो गई तो 10% तक ले लो। तो पिछले साल में गोल्ड सिल्वर ने काफ़ी परफॉर्मेंस दिया था। तो कई इन्वेस्टर के साथ हम बात कर रहे हैं, अच्छा आपका जो एलोकेशन 10% था अभी 12% हो गया या 15% हो गया, क्योंकि उन लोग ने ज़्यादा पैसे उसमें डाले थे, तो आप निकाल दीजिए। नहीं नहीं नहीं, अभी तो अनसर्टेनिटी बाकी है, क्यों निकाले? तो वो कॉन्वर्सेशन डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि पीपल इन्वेस्ट करते हैं रियर व्यू मिरर देखने से, और वो टेरिबल आइडिया है, क्योंकि आप इन्वेस्ट फ्यूचर के लिए कर रहे हैं, पास के लिए, पास के हिसाब से नहीं करते। आप ड्राइविंग रियर व्यू में देख के नहीं चलते, अच्छा पीछे ट्रैफिक नहीं है तो मैं फुल स्पीड जाऊंगा, लेकिन आगे ट्रैफिक है तो
वो आई थिंक याद करना चाहिए। तो गोल्ड एक हो गया एलोकेशन, दूसरा इंटरनेशनल। वो क्यों? कितना परसेंट? उसमें अभी हमारे अगर परसेंटेज यूज़ करना है और अगर इंटरनेशनल इक्विटी है तो डोमेस्टिक इक्विटी का 10-15%। तो अगर इक्विटी 15-50% है तो इंटरनेशनल पार्ट। 5 से 7%, 7% होगा तो 10% अराउंड। There's no again fixed answer. Yeah. But people want to know that answer. So okay, you're in this range. Then we nudge them. Acha, now can you increase it? No, you reduce it. It is not good for you. So again, I think understanding their psyche is very important. What they've experienced, what they've lost. ये That is बहुत इम्पोर्टेंट है। सो आई मीन कि कस्टमाइज्ड होता है ये, और ये मतलब इतना रिलक्टेंस है ऐसे स्टैंडर्ड आंसर देना, हाँ, कि बहुत ज़्यादा रिलक्टेंस है, बिकॉज़ आंसर को वो सही मान लेते हैं, उसका संदर्भ याद ही नहीं रखते। जैसे मैं बता रहा था कि हम लोग पर्सनल फाइनेंस की बात कर रहे हैं। अटेंशन पूरा फाइनेंस पे है, पर्सन पे नहीं है। मेरे हिसाब से पर्सन पोर्शन इज मोर इम्पोर्टेंट देन द फाइनेंस। करेक्ट। Wow. Amazing. Thank you so much for doing this. बहुत बहुत मजा आया आप तीनों से बात करके. Last question again that I ask all my guests. It's a tricky one. If you are in the shoes of Kushal Lodha and if you are interviewing all three of you, तो आप आपसे क्या सवाल पूछते? आपने सारे पूछ लिए सुन के। मैं सोच रहा हूँ कि मैं इतने सारे सवाल नहीं सोचता मैं इसके बारे में। तो मैं अपने आप से यही पूछता, मतलब अगर मैं इफ आई वाज इन योर सीट, कि कैसे आए, क्यों आए, इस प्रोफेशन में क्यों आए। राइट, सो लेट मी आंसर द क्वेश्चन दैट आई आस्क्ड माई सेल्फ। ओके, कि बहुत कन्वीनियंट था हमारे लिए, फीस चार्ज करते थे, और सॉरी फीस चार्ज करते थे प्लानिंग के लिए, और डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कमीशन मिलता था। ओके, फ्रॉम देयर द जर्नी टू फी ओनली, मेरे तो कंपनी का नाम ही फी ओनली इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स एलएलपी। तो क्यों किया? ओके, और उसके पीछे एक कहानी बहुत डिफिकल्ट है। ओके, दुनिया में कहीं भी और इंडिया में भी एडवाइस के लिए पैसा देना, ओके, वो थोड़ा डिफिकल्ट होता है। यू हैव टू कॉन्स्टेंटली प्रूव योर यूजफुलनेस फॉर इन एडवांस। करेक्ट। सो क्यों किया वो? तो ये एक तो सबसे ज्यादा मैंने अपने आप के लिए किया। ये मतलब आई फील गुड when I charge the person in whose life I'm making a difference. Okay, I feel मुझे प्रोफेशनल लगता है जब मैं फीस चार्ज करता हूँ वर्सेस कमीशन जब मैं लेता था। तो कमीशन लेने में कोई गलती नहीं है, प्लीज डोंट गेट मी रॉन्ग, लेकिन मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है जब मैं फीस चार्ज करता हूँ। अच्छा, मैंने किया कैसे? तो जैसे सब लोगों ने शुरू किया, शुरू-शुरू में आपके दोस्त ही आपके क्लाइंट्स होते हैं। तो मेरा बहुत ही निकटतम दोस्त जो था, उसने वो मेरा क्लाइंट था, और और उससे मैं रोज़ मिलता हूँ, आज भी मिलता हूँ, आज भी मेरा क्लाइंट है और मेरा सबसे क्लोज़ फ्रेंड है। तो वो मैं उससे जब बात करता था, बीच में मुझे लगा कि ही थिंक्स वो मेरे पे फ़ेवर कर रहा है कि मुझे बिज़नेस दे रहा है, ओके? और मैंने उसके लिए फ़ी माफ़ कर दिया था, सिर्फ़ कमीशन ले रहा था। तो मुझे लग रहा था कि मैं उस पे फ़ेवर कर रहा हूँ, मैंने अपनी फ़ीस नहीं ली, ओके? देन इट स्ट्रक मी कि मतलब ये दिस इज़ नॉट करेक्ट। आई एम गिव मतलब मैं उसको प्रोफ़ेशनल सर्विस दे रहा हूँ, ओके? अगर उसको वो अच्छी लगती है तो ही शुड पे, अगर नहीं अच्छी लगती है तो नहीं करेगा, ओके? एंड आई थिंक दैट टू मी वाज़ अ टर्निंग पॉइंट। और भी बहुत सी रीज़न्स थी, बट दैट टू मी मेरे लिए टर्निंग पॉइंट था, और इसीलिए मैंने जो प्रोफ़ेशनल टर्न लिया टुवर्ड्स फी ओनली, इट वाज़ बिकॉज़ ऑफ दैट। एंड आई फ़ील बहुत अच्छा लगता है। जैसे सुरेश ने भी कहा, ओके, ये बहुत ही फुलफिलिंग प्रोफ़ेशन है, ओके, बहुत ज़्यादा। और अगर इसमें से आप कोई भी ये देख रहे हो और इसके बारे में सोच रहे हो, तो चाहे आप डिस्ट्रीब्यूटर बनो, चाहे आप इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र बनो, लेकिन ये प्रोफ़ेशन बहुत फुलफिलिंग है। दूसरों की लाइफ़ को, उसके उद्देश्य को पूरा करने में आप हेल्प कर रहे हो, बहुत अच्छा लगेगा, और पैसा भी अच्छा बनेगा। दिस इज़ नॉट अ चैरिटी दैट यू आर डूइंग। सो व्हिच अदर प्रोफ़ेशन में you get respect and you get money?
That is the reason So, Kushal, if I were you, the question which I will ask is the chicken and egg question. Have you come into this profession because you are convinced about it, or you are convinced about the profession, that is why you have come into this thing? So, I mean, which one is that? So that is uh, to start with. I got convinced. So if I have told you my story, I was convinced that this is a great thing. Along the way, मुझको ये भी महसूस हुआ कि क्लाइंट्स का लाइफ में एकदम गहरा डिफरेंस मैं कर सकता हूँ, मैं देख चुका हूँ। सो नाउ लाइक ही सेड, हम पैसा भी बना रहे हैं, मीनिंग हमारा प्रैक्टिस भी अच्छा ही चल रहा है, और हम बहुत बढ़िया डिफरेंस हमारा क्लाइंट्स का लाइफ में भी हम देख रहे हैं। ओके, सो दिस इज अ वंडरफुल प्रोफेशन. सो वी कॉल आवरसेल्व्स फाइनेंशियल डॉक्टर्स, आई मीन लॉट ऑफ टाइम्स. So doctor, why is it called a noble profession? Because they are making a huge difference in the health of the patients. So in our case, finances or wealth is one of the most important thing, health and wealth. So we are making a huge difference, and especially if it is done right, we are making a huge difference in their life. So the profession I have chosen is the right one, and I want to be in this profession because it is the right one. I think to add to both their points, I think the question really is that why is a very important question, as Harsh said. And I think for me it is two things. One, this is one profession where I don't have to pay to learn. I earn and learn. And that is phenomenal because that keeps me young and younger than him. The other thing, I think it's the part that he spoke about charging fees, and I think that piece. I think the concept to talk about is fiduciary, acting in client's interest, no conflict of interest. What they say about integrity, who you are when no one is looking, that's what I think we do. And very importantly, it allows us to sleep well at night. So we know that we have not done anything which is not in the client's interests. And I think that is very, very crucial and important. Amazing. Thank you so much all three of you for doing this. बहुत मजा आया आप तीनों से बात करके, एंड मैंने खुद बहुत ज़्यादा सीखा. आई एम श्योर मेरी ऑडियंस ने भी बहुत सीखा ये सब कॉन्वर्सेशन के बाद. सो थैंक यू सो मच फॉर स्पेयरिंग 2.5 hours. आई डिडंट रियलाइज 2.5 hours हमने स्पेंड किए, बट इट वाज एन एब्सोल्यूट फन कॉन्वर्सेशन एंड आई लर्नड अ लॉट. एंड दिस इज समथिंग लाइक यू हैव बस्टेड अ लॉट ऑफ मिथ्स जो मेरे पे दिमाग में थे, एंड आई एम श्योर मेरी ऑडियंस के दिमाग में भी बहुत सारे ऐसे चीज़ें जो मिथ्स थे जो आपने बस्ट किए. सो थैंक यू सो मच वंस अगेन, एंड विश यू थ्री ऑल द बेस्ट फॉर ऑल योर फ्यूचर एंडेवर्स. Thank Thank you. you so much. Thank you Thank so you. much. Thank you so much for watching this video till the end. Before we end this video, I'd like to thank Grow for being our title sponsor. With support like this, we can deliver actionable finance content to our audience. So go ahead and download the Grow app today and tell us in the comment section which guest you want so that we can invite them. Also, ऐसे कौन से questions है जो मैंने पूछने चाहिए थे, कौन से questions है जो मैंने नहीं पूछने चाहिए थे, ऐसे कौन से parts है आपको लगता है trim करने चाहिए थे, हमें comment section में बता देना ताकि we can give you the most value additive content. Thank you so much once again for watching this entire podcast, and stay tuned for more amazing episodes of Conversation with Kushal. Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.